Okay, so let's start with our second unit. Okay, which is Fourier series. So I think almost in all three division we have already introduced what is Fourier series. Okay, so as it contain a series, so it contain the infinitely many terms of sine and uh, cosine function. Okay, so let me first define what is Fourier series. Okay, quickly. So what is Fourier series? So any function, any periodic function, and which satisfy some Dirichlet conditions can be represented by the Fourier series. Okay, so what is that Fourier series? F of x is equal to, so this is our main formula, that f of x equal to a naught by 2 plus summation n runs from 1 to infinity, okay, in square bracket an cos n pi x by l plus bn sin n pi x by l. Okay, so this is the Fourier series of any function f of x. Okay, under certain condition, that function must be a periodic function and satisfies some Dirichlet condition. So here we can see, here in this series there are three unknowns which are a naught, an and bn, and these three unknowns are basically called as Fourier coefficients. Okay, so Fourier series calculate karna is nothing but we need to calculate we need to calculate these three coefficients a naught, an and bn. तो अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको Fourier series calculate करनी है, it simply means we need to find the values of a naught, an and bn. Okay, so let's first see what are the formulas for a naught, an and bn. So here what is a naught? So this a naught is equal to 1 by l. So all standard formulas are there. Just 1 minute, let me admit the students. Okay, so a naught is equal to 1 by l integration c to c plus 2l. So what is c to c plus 2l? C to c plus 2l is the interval of a given function. Okay, and which is there in your question itself. So this c to c plus 2l is actually the interval of your given function, and just integrate that given function. Okay, so from that you will get the value of a naught. So this integration is always easy. A naught calculate करना इतना टफ होगा नहीं आपके लिए, आपको ज्यादा वर्कआउट करना है an और bn के केस में. Okay, and next is an. So what is an? An is 1 by l, then again integration from c to c plus 2l. C, let me first write the term. So it is equal to f of x cos n pi x upon l into dx. In a similar way, we can write the formula for bn, and bn is equal to 1 by l integration from c to c plus 2l f of x into sin n pi x upon l. Okay, so how you remember this formula? आपको एट देन इतना ही प्रिपेयर करना है फोरियर सीरीज में. व्हाट इज फोरियर सीरीज एंड व्हाट आर द फॉर्मुलाज फॉर द कांस्टेंट ए नॉट, ए एन एंड बी एन. ओके, सो ए नॉट का फॉर्मूला कैसे याद रखना है? ए नॉट इट सिंपली मींस जस्ट टेक द इंटीग्रेशन ऑफ गिवन फंक्शन. ओके, 1 by l c to c plus 2l, ये तो कॉमन ही है सब में. हाउ यू रिमेंबर फॉर्मूला ऑफ ए एन? ए एन का जो टर्म आता है, आप देखो दिस इज द टर्म ऑफ ए एन, या आपका ए एन का टर्म है, तो इसी टर्म को आपको इंटीग्रेट करना है. जस्ट रिप्लेस दिस ए एन बाय एफ ऑफ एक्स. आप देखो ए एन की जगह पे एफ ऑफ एक्स लिखो, इसी टर्म को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं. ठीक है, सो इन सिमिलर वे हाउ यू रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर बी एन? ये होता है बी एन का टर्म, तो इस टर्म को ही आपको इंटीग्रेट करना है. जस्ट रिप्लेस बी एन बाय एफ ऑफ एक्स. ओके, तो इसलिए फॉर्मुलेज याद रखना इतना टफ होगा नहीं, एंड ये पार्ट कॉमन ही है. 1 by l c to c plus 12, 1 by n c to c plus 12. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फोरियर सीरीज. आई थिंक ये सारे डिवीजन में कवर हो गया था. इसके आगे मैंने कुछ रिमार्क्स दिए थे स्पेशली फॉर इंटीग्रेशन पर्पस. तो जितने रिमार्क्स है उतना ही आपको इंटीग्रेशन का कंटेंट यहाँ पे हमें यूज करना है. तो अगर आप अच्छे से देखते हो तो इतना कुछ हम 12th में जितना अपने इंटीग्रेशन में लर्न किया है वो हम यहाँ पे कुछ ज्यादा यूज नहीं कर रहे. ओके, विल फोकस ओनली ऑन द रिमार्क्स विच वी डिस्कस इन द क्लास. ओके, सो बस मुझे ये बोलो कि सारे डिवीजन में जनरलाइज रूल ऑफ बाय पार्ट्स हो गया है कि ऐसी कोई डिवीजन है जिसमें Yes. कवर नहीं हुआ है?
So I guess as per my knowledge, I have covered generalized rule of by parts in all three division and with some remarks. Okay, so बस मैं वो quickly Yes. हाँ लिख के आगे जाता हूँ. So इसके लिए ओके स्पेशली फॉर दिस टू टर्म्स ओके ए नॉट इज वेरी सिंपल एज फार एज कैलकुलेशन इज कंसर्न. आपको थोड़ा बहुत वर्कआउट करना होता है तो वो ए एन और बी एन के कैलकुलेशन पे ही करना होता है. उसके लिए मैंने कुछ रिजल्ट्स आपको दिए थे. मैं बस वो विद एक बार क्विकली रिवाइज कर देता हूं सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द एग्जांपल्स डायरेक्टली. सो व्हाट आर दोज थ्री रिमार्क्स स्पेशली. सो जो फर्स्ट रिमार्क था वो था आपका जनरलाइज रूल ऑफ बाय पार्ट. सो जनरलाइज रूल ऑफ बाय पार्ट्स या ऑलरेडी आपने लिखा ही है. So it is actually integration of uv dx okay is equal to u into v1 minus u dash into v2 plus u double dash into v3 and so on. ठीक है. Where this u dash is actually the derivative of u with respect to x, or we can say the first derivative. U double dash is actually second derivative, that is dt square u by dx square and so on. Okay, where this v1 is actually the integration of v and v2 is actually integration of v1 and so on, like that. v3 is actually integration of v2 and so on. ठीक है. आपको मैंने एक ट्रिक दी थी. ओके, इन दिस जनरलाइज रूल ऑफ बाय पार्ट्स यू जस्ट रिमेंबर ओनली फर्स्ट टर्म. आप बस फर्स्ट टर्म को ही याद रखो. ठीक है. सो दैट फर्स्ट टर्म इज यू एज इट इज आता है यहाँ पे. सो कैरी दैट u as it is and take the integration of v. So what is your first term? U into integration of v. Then give alternatively plus and minus sign and continue the derivatives of फर्स्ट टर्म. जो आपका पहला टर्म है उसके डेरिवेटिव्स कंटिन्यू करने. जैसे u का डेरिवेटिव u डैश आता है, u डैश का डेरिवेटिव u डबल डैश आता है, लाइक दैट. एंड जो आपका सेकंड टर्म है उसके आपको इंटीग्रेशन कंटिन्यू करने. जैसे कि v1 का इंटीग्रेशन क्या है, v2 है, करेक्ट. एंड v2 का इंटीग्रेशन क्या है, v3 है. ओके, तो इसलिए इस केस में यू नीड टू रिमेंबर ओनली फर्स्ट टर्म. आफ्टर दैट फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव कंटिन्यू होगा, सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन कंटिन्यू होगा. ओके, सो विल यूज दिस रिजल्ट इन examples also. So again we will verify this. हाँ, इसमें एक और पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, हाउ वी सिलेक्ट अवर u फंक्शन एंड v फंक्शन. सो u फंक्शन जनरली क्या होता है, इट्स अ फंक्शन whose derivative vanishes, means zero. Okay, means zero. And v is any other function. Why it is important कि अगर दोनों में से किसी भी फंक्शन का, जैसे कि सपोज u फंक्शन है, अगर u फंक्शन का डेरिवेटिव कहीं पे भी जीरो नहीं हो रहा है तो इस सीरीज में इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स आएंगे. इट सिंपली मींस वी कुडंट फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ u v dx. आपको एक अप्रोक्सीमेट इंटीग्रेशन मिल जाएगा, करेक्ट, और एग्जैक्ट इंटीग्रेशन वहां पे नहीं मिलेगा. इसलिए अगर u फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं जीरो हो रहा है कहीं पे भी, ओके, या ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं वहां पे जिसका डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, वहां पे ये रूल आपको यूज नहीं करना है. ठीक है. सो स्पेशली और ज्यादातर एग्जांपल्स में u फंक्शन आपका क्या आता है, इट्स सिंपली अ पॉलिनोमियल फंक्शन लाइक x स्क्वायर, x क्यूब, x रेज़ टू 4, क्योंकि इनके डेरिवेटिव्स क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं कुछ स्टेप के बाद. ठीक है. तो अगर डेरिवेटिव नहीं जीरो हो रहा है तो उस केस में ये रूल यूजफुल नहीं है. ओके, अगर हो रहा है जीरो तो ही आपको जनरलाइज रूल ऑफ बाय पार्ट से जाना. ठीक है. बट इन आवर केस, इन मोस्ट ऑफ द केस वी कैन अप्लाई जनरलाइज रूल ऑफ बाय पार्ट्स. आपको वैसे एग्जांपल है. ओके, सो ये था पहला रिजल्ट. सेकंड रिजल्ट जो मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, विच इज साइन ऑफ के पाई. मींस व्हाट, साइन के केस में अगर आप पाई को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आता है, जीरो आता है. एंड कॉस के केस में क्या होता है, अगर आप किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हो इट गिव्स यू द आंसर -1 रेज़ टू के. अब मैं इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये हो गया ऑलरेडी. ठीक है. सो साइन के पाई इज ऑलवेज जीरो वेयर के इज एनी इंटीजर. अगर आप पाई को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हो साइन के केस में, वो इवन इंटीजर आने दो, ऑड इंटीजर आने दो, साइन के केस में आंसर आपको क्या मिलता है, जीरो मिलता है. बट कॉस के केस में क्या होता है, कॉस पाई -1 होता है, कॉस 2 पाई +1 होता है. मतलब कॉस के केस में क्या होता है कि अगर आप इवन इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हो तो 1 आंसर आता है, अगर आप ऑड इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हो तो -1 आंसर आता है. इसलिए इसको आप किससे याद रखो, -1 रेज़ टू k, where k is even you will get one value, if k is odd you will get -1 value. एंड जो थर्ड रिजल्ट था, ठीक है,
वो था इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स से साइन ऑफ बी एक्स dx। इसका मैंने डायरेक्ट आपको फॉर्मूला दिया था विच इज इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ठीक है, तो अगर आपके पास साइन का है सो कॉस का भी आप लिख सकते हो। सो ओके, सो लेट मी जस्ट कॉपी दिस। तो अगर आपके पास साइन का रिजल्ट है तो कॉस का भी वहां पे आ जाएगा। सो लेट मी राइट द फॉर्मूला फॉर कॉस। तो साइन की जगह पे अभी मैं कॉस कर देता हूँ। तो कॉस के केस में चेंज क्या होगा, अगर पहले कॉस है तो यहाँ पे आएगा कॉस और फिर यहाँ पे होगा साइन और ये साइन होगा प्लस। ओके, सो हाउ यू रिमेंबर दिस रिजल्ट, ई रेस टू एक्स अपॉन स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ही है, ई रेस टू एक्स अपॉन स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर साइन आता है तो ए साइन एक्स होगा, कॉस आता है तो ए कॉस एक्स होगा ऑटोमेटिकली। अगर पहला टर्म ए साइन है तो सेकंड बी कॉस होगा, अगर पहला टर्म ए कॉस है तो सेकंड टर्म बी साइन होगा। नाउ हाउ यू रिमेंबर दिस साइन माइनस एंड प्लस, इतना आप याद रखो इंटीग्रेशन के केस में कॉस का जो साइन होता है वो होता है माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ पे प्लस आता है। ओके, सो इतना ऑलरेडी मैंने सारे डिवीजन में डिस्कस किया है। ओके, और ये जो लास्ट के 3 रिजल्ट है, दिस 3 रिजल्ट आर इंपॉर्टेंट ओके टू कैलकुलेट ए एन एंड बी एन। ए एन और बी एन कैलकुलेट करने के लिए इस तीनों रिजल्ट्स मैंने आपको दिए थे। नाउ लेट अस फोकस ऑन एग्जांपल्स डायरेक्टली। तो अभी आज के सेशन में हम इतने एग्जांपल्स कवर करने वाले, सो ऑलमोस्ट 7 to 8 एग्जांपल। इतना कंटेंट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, इसलिए मैं स्पेशली ऑनलाइन लेक्चर्स में ले रहा हूँ। एंड दिस मैंने एग्जांपल्स और जितना मैंने थ्योरी में कुछ लिया होगा ओके विच इज सफिशिएंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ यूनिट नंबर 2। इतने ही एग्जांपल्स आप प्रिपेयर करो। आपको मैंने पहले बोला कि ये मैं ले रहा हूँ अभी, जैसे कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर मैंने दिया, आपको एग्जाम में 2 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा या से 10 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा या एक्स स्क्वायर प्लस पाई होगा, लाइक दैट इसके अराउंड ही सारे एग्जाम्पल्स आपको एग्जाम में रहेंगे। तो इसलिए प्रिपेयर दिस एग्जाम्पल्स ओके। अच्छे से आप सॉल्व करके देखो, खुद से सॉल्व करो तभी आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दी फर्स्ट एग्जाम्पल। मैं कुछ चेंजेस करता हूं इसमें, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दी फर्स्ट एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल्स, इसके आगे आप लिखो। सो फर्स्ट, फाइंड फोरियर सीरीज ऑफ, फाइंड फोरियर series of or Fourier series expansion of f of x equal to 4 minus x square defined on the interval 0 to 2 pi। ओके, पहले पाई के केस में लेते हैं, डिफाइन ऑन द इंटरवल 0 to 2 pi। ओके, सो आप इसके आगे आप नोटबुक में लिखते जाओ। सो इन सोल्यूशन, तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपको रहेंगे। सारे क्वेश्चन में आपको फंक्शन गिवन होगा और आपको इंटरवल गिवन होगी। सो 0 to 2 pi इज एक्चुअली योर इंटरवल। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट रह गया था एक्सप्लेन करना, हाउ वी कैलकुलेट एल हियर। कैन एनीवन टेल मी हाउ वी कैलकुलेट एल? एल कैसे कैलकुलेट? बी माइनस ए अपॉन 2। हाँ, बी माइनस ए अपॉन 2 मीन्स जो आपकी इंटरवल है उसकी लेंथ बाय 2 है ना, उसकी लेंथ बाय 2। सो लेट्स कम हियर। ओके, तो फोरियर सीरीज के किसी भी क्वेश्चन में आपकी फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट यू कैलकुलेट एल, है ना। सो इन सॉल्यूशन, जस्ट 1 मिनट, लेट मी चेंज द कलर। हाँ, सो फोरियर सीरीज के किसी भी क्वेश्चन में पहले आप क्या करो, एल कैलकुलेट करो। सो लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट एल। एल का फॉर्मूला मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है विच इज बी माइनस ए बाय 2। ओके, इन अवर केस आपकी इंटरवल क्या है, यहाँ पे क्या इंटरवल गिवन है आपको, 0 to 2 पाई इंटरवल गिवन है। तो इसकी लेंथ क्या आएगी, 2 पाई, ओके ए कॉमा बी पॉइंट है ना, सो 2 पाई माइनस 0 बाय 2, देयरफॉर योर एल इज पाई। ठीक है, सो एल क्या आ गया, यहाँ पे पाई आ गया। नाउ लेट्स कैलकुलेट ए नॉट। सॉरी, हाँ, तो ये यल आपने कैलकुलेट किया। इसके आगे आपको करना क्या है,
नाउ राइट डाउन द फोरियर सीरीज ऑफ गिवन फंक्शन। फर्स्ट स्टेप क्या, यल कैलकुलेट करो, उसके बाद फोरियर सीरीज लिखो, उसके बाद ए नॉट ए एन और बी एन कैलकुलेट करो। सो नाउ लेट्स राइट द फोरियर सीरीज। तो क्या है फॉर्मूला, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2 प्लस समेशन n runs from 1 to infinity in bracket an cos n pi x upon l plus bn sin n pi x upon l, and let's close this bracket. ठीक है, ओके। हाँ, नाउ बट we already calculated the value of L, आपने already यहाँ पे L calculate किया है, so let's take L equal to pi and put that value of L in this Fourier series. So here you will get L की value यहाँ पे बस put करो, so here you will get a naught by 2 plus summation n runs from 1 to infinity an cos, ये आएगा पाई पाई कैंसिल होगा, so cos nx plus bn sin nx। जहां पे भी आपको नहीं समझ में आता इमीडिएटली माइक्रोफोन ऑन करके मुझे बोलो, ओके, और मुझे बोलो अगर कोई स्टेप भी रिपीट करनी है, नो प्रॉब्लम। डन। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, यल कैलकुलेट करना, सेकंड जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूलेज में वैल्यूज पुट करना, ओके। हाँ, तो मैंने एल की वैल्यू उस फॉर्मूले में पुट की। नाउ दिस इज अवर फाइनल फॉर्मूला, तो ये अभी आपका फाइनल फॉर्मूला है। आपको इस फॉर्मूले में करना क्या है, इन दिस फॉर्मूला वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ एल। तो ये आपका अभी मेन फॉर्मूला है। यहाँ पे बस आपको ए नॉट ए एन एंड बी एन ये सारे कोएफिशिएंट्स आपको कैलकुलेट करने हैं। सो लेट्स कैलकुलेट नाउ वन बाय वन। सो पहले कैलकुलेट करते हैं ए नॉट। ए नॉट का क्या है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी ऊपर मेंशन किया है, दैट फॉर्मूला इज 1 बाय एल सी टू सी प्लस 2l एफ ऑफ एक्स dx। अभी सारे वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे। एल की वैल्यू आपके पास है पाई, सो लेट मी टेक एल एज पाई। सी टू सी प्लस 2l का मीनिंग होता है आपकी इंटरवल, तो आपकी इंटरवल क्या गिवन है, इट इज 0 to 2 पाई। सो पुट कंसिडर दैट इंटरवल, सो इंटीग्रेशन आपका होगा यहाँ पे 0 to 2 पाई बिकॉज योर इंटरवल इज 0 to 2 पाई। एफ ऑफ एक्स आपको क्या गिवन है, योर एफ ऑफ एक्स इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर, सो it is 4 minus x square dx. Now solve this integral. So it is equal to 1 by pi, 4 का इंटीग्रेशन आता है 4x माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है एक्स क्यूब बाई 3 एंड योर लिमिट फ्रॉम 0 to 2 पाई। नाउ पुट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सर ये वाली स्टेप बताइए ना, कौन सी, ये अभी के वाली। हाँ, एल की वैल्यू क्या है पाई, सी टू सी प्लस 2l का मीनिंग क्या है, आपकी इंटरवल, आपकी इंटरवल क्या गिवन है क्वेश्चन में, 0 to 2 पाई। 0 to 2 पाई है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 to 2 पाई। फंक्शन आपको 2 क्या पाई गिवन है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। ओके, क्लियर नाउ, हाँ ओके। नाउ जस्ट सॉल्व दिस इंटीग्रल, ओके, इंटीग्रेशन बस आपको सॉल्व करना है। तो उसमें आपको पता है कांस्टेंट का के का इंटीग्रेशन क्या आता है, के इंटू एक्स, सो 4x एंड एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 एंड नाउ जस्ट पुट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो 1 बाय पाई इज इक्वल टू, पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं, मींस आपको x इक्वल टू 2 पाई पुट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू 2 पाई पुट करने के बाद इट गिव्स यू 8 पाई माइनस 2 का क्यूब है 8, सो 8 पाई क्यूब बाई 3। सो दिस इज जस्ट अपर लिमिट, ओके। माइनस करके अभी लोअर लिमिट पुट करो, x इक्वल टू अगर मैं 0 पुट करता हूं, दोनों में x आ रहा है तो इट गिव्स यू 0। तो ये मैंने अपर लिमिट के लिए लिखा, माइनस करके लोअर लिमिट के लिए लिखा, सो ऑल दोज वैल्यूज आर 0, ओके। now so finally, so this is 0 and here you can cancel the pi, so the finally the value of a naught is 8, 24 minus 8 pi square upon 3। yes, करेक्ट। तो ये अभी इसके आगे भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो 24 माइनस करके, या इसको ऐसे ही रख सकते हो, वैसे हमें ज्यादा कुछ इसमें सिंप्लीफाई करने की भी जरूरत नहीं है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए नॉट, डन। इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट में डालता हूं। यहां तक कैलकुलेशन इतने डिफिकल्ट नहीं रहेंगे किसी भी एग्जाम्पल में, तो ए नॉट कैलकुलेट करना अभी कंपलसरी सबको आना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ही आपको 2 to 3 मार्क्स मिल जाएंगे, ओके। हाँ, सो अभी करते हैं नेक्स्ट कोएफिशिएंट कैलकुलेट विच इज ए एन।
सो एन का फॉर्मूला क्या है, 1/L इंटीग्रेशन सी टू सी प्लस टू एल एफ ऑफ एक्स, ये फॉर्मूला आप प्रिपेयर ही करो अच्छे से, कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल dx। ठीक है, सारे वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे। एल की वैल्यू थी पाई, सो 1/पाई। सी टू सी प्लस टू एल मीन्स आपकी इंटरवल विच इज 0 to 2 पाई। एफ ऑफ एक्स मीन्स आपका फंक्शन विच इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड ये क्या होगा, कॉस एल इक्वल टू पाई था तो वो कैंसिल हो जाएगा, हियर यू विल गेट एन एक्स ओनली। सो एन का जो कैलकुलेशन होगा मोस्टली एन और बी एन का, वो हमेशा प्रोडक्ट फंक्शन में आता है। प्रोडक्ट फंक्शन आता है तो वहां पे आपको जनरलाइज रूल ऑफ बाय पार्ट्स ही यूज करना है, इसलिए वो कैलकुलेशन आपको केयरफुली करना होगा। सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन हाउ वी कैन अप्लाई जनरलाइज रूल ऑफ बाय पार्ट्स फॉर दिस टू फंक्शन। तो यहाँ पे दो फंक्शन है, वन इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ट्रीट दिस एज अ वन फंक्शन, इसको सेपरेट मत करो, ट्रीट दिस एज अ फर्स्ट फंक्शन एंड वन फंक्शन, एंड cos nx इज योर सेकंड फंक्शन। तो जनरलाइज रूल ऑफ बाय पार्ट्स के लिए जो आपकी पहली रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि उन दोनों में से वहां पे एक ऐसा फंक्शन चाहिए जिसका डेरिवेटिव कुछ स्टेप के बाद क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो आपको दिखाई दे रहा है कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर ये पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है 2, तो इसका थर्ड डेरिवेटिव जो आता है वो क्या आता है, जीरो आता है। देयरफॉर वी कॉल इट एज u, क्योंकि इसका डेरिवेटिव कुछ स्टेप के बाद क्या होगा, जीरो होगा, एंड ऑटोमेटिकली दिस बिकम योर v, एंड जो भी सेकंड होगा वो आपका होगा v फंक्शन। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि वहां पे एक ऐसा फंक्शन चाहिए जिसका डेरिवेटिव कुछ स्टेप के बाद क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। सो दिस इज योर u, दिस इज योर v। ओके, नाउ u और v आइडेंटिफाई करने के बाद, ओके लेट मी जस्ट टेक वन पेज। हाँ, सो यू और भी आइडेंटिफाई करने के बाद आपको नेक्स्ट करना क्या है, we need to use that generalized rule of by parts। हाँ, so let's do that। so it is equal to, let me write this 1/pi as it is। अब ये रूल कैसे यूज करना है, डेफिनेट इंटीग्रल है तो पहले स्क्वायर ब्रैकेट डालता हूं क्योंकि अपर लिमिट और लोअर लिमिट मुझे लिखना है। मैंने आपको क्या बोला था, जनरलाइज रूल ऑफ बाय पार्ट्स यूज करने के लिए आप बस पहला टर्म याद रखो। तो पहला टर्म होता क्या है, यू को वैसे ही रखो, तो मैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर को वैसे ही रखता हूं। जो आपका सेकंड टर्म है उसका क्या आता है वहां पे, इंटीग्रेशन। तो कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन एन एक्स अपॉन एन। फिर से सुनो, पहला टर्म हमेशा क्या होगा, यू को वैसे ही लिखा है, ओके, यू को वैसे ही लिखो। जो आपका सेकंड टर्म है या जो आपका v है उसका यहाँ पे इंटीग्रेशन कंसिडर करो। नाउ आफ्टर दिस थिंग्स आर इजी, इसके आगे फिर इजी है। इसके आगे करना क्या है, नाउ गिव अल्टरनेटिवली प्लस एंड माइनस साइन। तो ये प्लस साइन था तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। जो पहला टर्म था उसका डेरिवेटिव कंटिन्यू करो, जो आपका सेकंड टर्म था उसका इंटीग्रेशन कंटिन्यू करो। तो पहला टर्म का डेरिवेटिव क्या आएगा, इट इज -2x। ओके, ये माइनस अलग है, ये क्योंकि ये प्लस था तो ये माइनस है। अभी पहला टर्म का डेरिवेटिव क्या है, -2x, एंड नेक्स्ट का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस ऑफ एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। अब ये माइनस साइन था, नाउ गिव प्लस साइन, तो प्लस साइन दे रहा हूं। इसका डेरिवेटिव क्या है, -2 होगा। ओके, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या है, प्लस साइन होगा, सो साइन एन एक्स अपॉन एन क्यूब। और मैं ऐसे लिख रहा हूं, हमेशा नीचे नीचे लिख रहा हूं, इससे क्या होगा, आपको जजमेंट के लिए या डेरिवेटिव्स के लिए इजी होगा। एंड यूर लिमिट्स फ्रॉम 0 to 2 पाई। ओके, इज दिस क्लियर? ये सबको समझ में आ रहा है कैसे यूज करना है? ये अगर आपको आ रहा है ना तो इस टॉपिक में इतना कुछ टफ नहीं है। दिस इज द ओनली रिजल्ट दैट यू नीड टू प्रिपेयर। ओके, ये क्लियर हो रहा है सबको मैं कैसे यूज कर रहा हूं? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, उसके आगे फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन। अब इसके आगे चेन नहीं जाएगी क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, -2 का जो डेरिवेटिव वो जीरो आएगा, मतलब ये चेन यहीं पे स्टॉप होगी, इसलिए मैंने नेक्स्ट टर्म नहीं लिखा है। नेक्स्ट टर्म आने ही नहीं वाला बिकॉज -2 का डेरिवेटिव क्या है वहां पे, जीरो है। इज दिस क्लियर? ये क्लियर हो गया सबको? सर और एक बार बताओ। ओके, सो हाउ वी अप्लाई जनरलाइज रूल ऑफ बाय पार्ट्स। आपको करना क्या है, जो आपका पहला यू टर्म है, यू कैसे आइडेंटिफाई किया वो सबको समझ में आ रहा है। जिसका डेरिवेटिव जीरो होता है वो आपका होता है यू, एंड अदर जो भी होगा दैट बिकम वी। तो आपको पहले यही टर्म याद रखना है, ओनली दिस टर्म यू नीड टू रिमेंबर। तो ये क्या होता है, यू को वैसे ही लिखो, सो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर।
जो सेकंड टर्म है जो आपका v है उसका यहाँ पे आता है इंटीग्रेशन। तो cos का इंटीग्रेशन होता है साइन nx अपॉन n होगा, क्योंकि ये चेन रूल है, आपको डेरिवेटिव से डिवाइड करना होगा। इसके आगे क्या करना है, जो पहला टर्म है, ये जो पहला टर्म है इसके डेरिवेटिव्स कंटिन्यू करो, ये जो सेकंड टर्म है इसके इंटीग्रेशन कंटिन्यू करो। ये तब तक होगा जब तक आपको जीरो नहीं मिलता है। जैसे आप देखो हाँ, और ये साइन कैसे दे रहा हूं, ये प्लस साइन था इसलिए यहाँ पे माइनस साइन है और उसके आगे प्लस साइन है, सो गिव अल्टरनेटिवली प्लस एंड माइनस साइन। अभी आप देखो 4 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या है, माइनस टू का डेरिवेटिव क्या है, जीरो, क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो इसलिए ये यहीं पे स्टॉप होगा। साइन का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस का इंटीग्रेशन क्या है, प्लस साइन, तो ये माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन क्यूब होगा। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, हर एक स्टेप में फर्स्ट का डेरिवेटिव लेके जा रहा हूं विच इज माइनस टू एक्स, और सेकंड का क्या ले रहा हूं, इंटीग्रेशन ले रहा हूं। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो 4 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस टू एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। उसके आगे स्टेप में देखो माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव माइनस टू, माइनस कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन। उसके नेक्स्ट स्टेप में जाएगा माइनस टू का डेरिवेटिव बट विच इज जीरो, इसलिए मैं आगे का टर्म नहीं लिख रहा। इज दिस क्लियर नाउ? Yes, sir. ओके। मेन पार्ट जो होगा वो इसके आगे वाला है, तो जहां पे आपको सबसे ज्यादा वर्कआउट करना है वो एक्चुअली इसके आगे, क्योंकि आपकी जो मेजोरिटी में मिस्टेक होगी वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के कैलकुलेशन में ही होगी, तो इसलिए वो आप थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करो। तो यहां तक आप प्रैक्टिस से आ ही जाओगे। इसके आगे करना क्या है, मुझे यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करके कैलकुलेशन करना है, तो वो आप देखो मैं कैसे कर रहा हूं। सो 1 बाय पाई एज इट इज, ये स्क्वायर ब्रैकेट भी एज इट इज। अभी मैं क्या करूंगा, अपर लिमिट पुट करूंगा। अपर लिमिट मेरा क्या है, 2 पाई। ओके चलो पहले इस टर्म में पुट करते हैं, यहाँ पे इस टर्म में पुट करते हैं। हाँ, सो 2 पाई में पहले मैं साइन में अगर देखूं तो साइन में क्या दिखाई देगा मुझे, साइन ऑफ 2n पाई। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 2n पाई, एक्स इक्वल टू अगर मैं 2 पाई रखता हूं तो यहाँ पे मुझे दिखाई देगा साइन ऑफ 2n पाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 2n पाई, 0. जीरो, क्योंकि आपको मैंने पहले 0. ही एक्सप्लेन किया है साइन के केस में अगर आप पाई को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हो, वो इंटीजर इवन आने दो ऑड आने दो, अगर आप किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हो आंसर क्या आता है, जीरो आता है, इसलिए ये टर्म आपका होगा जीरो। करेक्ट है, बिकॉज साइन 2n पाई इज जीरो। अभी आते हैं नेक्स्ट टर्म पे, सेकंड टर्म पे आते हैं। सेकंड टर्म में आपको क्या करना है, अभी ये जीरो आ रहा था इसलिए मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूं फर्स्ट टर्म में। अभी सेकंड टर्म में भी मुझे x इक्वल टू 2 पाई पुट करना है, तो ये तो हो गया माइनस माइनस प्लस, x इक्वल टू 2 पाई, सो 2 इंटू 2 बिकम 4। ओके, एक्चुअली 3 टाइम्स माइनस है ना, 1 2 3, तो ये मैं माइनस ही कर देता हूं। देयर आर 3 माइनस साइन, 1 2 3। हाँ, नाउ cos ऑफ 2n पाई क्या है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos ऑफ 2n पाई, 1 1. आपको मैंने क्या एक्सप्लेन किया है कि पाई को कॉस के केस में पाई को अगर आप इवन इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर 1 आता है, एंड अगर आप ऑड इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हो आंसर -1 आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आंसर 1 आएगा, तो इसलिए ये 4 पाई हो गया इंटू इट गिव्स यू 1 अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, लास्ट स्टेप में फिर से क्या आएगा, साइन 2n पाई आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे x इक्वल टू पाई अगर आप रखते हो तो यहाँ पे फिर से क्या आएगा, साइन 2n पाई आएगा। साइन 2n पाई तो क्या है, जीरो है, इसलिए ये माइनस माइनस प्लस होगा, बट लास्ट स्टेप में भी आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। ओके, तो ये सबसे ज्यादा यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है, साइन 2n पाई इज जीरो एंड कॉस 2n पाई इज 1। तो ये हो गया अपर लिमिट का कैलकुलेशन। सर वहाँ पे n पाई भी आएगा ना, n पाई? n पाई कैसे आएगा, कहाँ पे, सर x की वैल्यू 2 पाई, x की वैल्यू 2 पाई, तो 2n पाई ही होगा ना, जहां पे भी दिखाई देगा। तो लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी एक पाई ब्रैकेट के अंदर ऑलरेडी एक पाई चाहिए ना, वो तो कैंसिल हो गया ना, फॉर्मूले में ये पाई था, बट यल क्या है, यल पाई ना, हाँ एल भी पाई है। हाँ, तो यल के हाँ साथ हाँ कैंसिल हो गया, करेक्ट। हाँ, समझ गया सर, समझ गया। हाँ. ओके डन। सो दिस इज फॉर अपर लिमिट। ओके, अभी आप माइनस साइन दो एंड ये सेम कैलकुलेशन रिपीट करो लोअर लिमिट के लिए। तो ये मैंने अभी इसके लिए कर दिया, x इक्वल टू 2 पाई के लिए, अभी लोअर लिमिट के लिए करते हैं। सो नाउ पुट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 में अगर पुट करता हूं तो साइन 0 क्या है, व्हाट इज साइन 0, साइन 0 इज 0, है ना, तो इसलिए पहला टर्म फिर से 0 आएगा। यहाँ पे कर लेते 3 टाइम्स माइनस, तो इसलिए हाँ यहाँ पे भी करने की जरूरत नहीं क्योंकि x क्या है, 0, तो 3 टाइम्स माइनस है तो ये भी क्या होगा,
जीरो। अभी यहाँ पे आते बट इसमें भी क्या आएगा, साइन जीरो आएगा, तो साइन जीरो क्या है, जीरो। तो इसलिए लोअर लिमिट के टाइम पे तीनों वैल्यूज क्या हो जाते, जीरो हो जाते। ये थोड़ा आपको है ना, मतलब अभी मैं ऐसे बोल भी रहा हूं बट आप ये खुद से आराम से बाद में एक बार ट्राई करके देखो, ये आना चाहिए करेक्ट, क्योंकि इसमें कुछ स्टूडेंट को थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। अभी मैं कितने टाइम्स भी एक्सप्लेन करूं, आप खुद से एक बार पुट करके ट्राई करो कि क्या क्या वैल्यूज मिल रहे हैं। उसका रीजन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रेड कलर में शो किया है। यहाँ पे जीरो क्यों हो रहा है, बिकॉज साइन टू एन पाई इज जीरो। यहाँ पे जीरो क्यों हो रहा है, बिकॉज साइन जीरो इज जीरो। हाँ, तो इसलिए ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके ही ये क्लियर होगा। ये ऐसे ओरली आपको समझ में आ ही जाएगा अभी, बट यू नीड प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस से ही होगा। ओके, एंड नाउ जस्ट सिंप्लीफाई दिस, जो भी होगा वो फाइनल आंसर ही आपका। सो इट इज इक्वल टू, ये माइनस साइन है, ओके, एक ही टर्म रह जाता है वहां पे, सो पाई पाई तो वैसे भी कैंसिल होगा, सो योर आंसर इज -4/n²। एंड प्लीज करेक्ट मी अगर कुछ रॉन्ग हो जाता है तो। करेक्ट है ये फर्स्ट का? yes sir. ओके, ठीक है, डन। सो अभी कैलकुलेट करते bn। अभी an अगर आपसे हो जाता है ना, bn इतना टफ नहीं है। ओके, सो bn का फॉर्मूला क्या था, 1/l। an और bn की कैलकुलेशन सिमिलर है, तो जिनको अभी an नहीं समझ में आ रहा है, bn भी समझ में आता है, तो भी आप an रीड कर पाओगे। ठीक है, सो c2 c प्लस 2l f ऑफ x साइन n पाई x अपॉन l dx। ओके, अभी सारे वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो 1/पाई, लिमिट्स आप सॉरी इंटरवल जो आपकी थी वो थी 0 to 2 पाई, फंक्शन आपका था 4 - x²। ओके, यहाँ पे क्या है 4 - x², और यहाँ पे क्या है साइन इंटू एल इक्वल टू पाई था, तो यहाँ पे आपको मिलेगा n इंटू एक्स ओनली dx। तो अगेन इट इज अ प्रोडक्ट फंक्शन, आपको जनरलाइज रूल ऑफ बाय पार्ट्स से जाना है, तो आपको पता है कि इसका डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, देयरफॉर ये आपका होगा u एंड दिस बिकम योर v। फिर से आपको जनरलाइज रूल ऑफ बाय पार्ट्स से लिखना है, तो वो कैसे होता है, सो इट इज 1/पाई एज इट इज। सो फॉर जनरलाइज रूल ऑफ बाय पार्ट्स आपको पहला टर्म याद रखना है। पहला टर्म क्या होता है, u को वैसे ही रखो, सो 4 - x² को मैं वैसे ही रख रहा हूं। सेकंड का क्या लेना है, इंटीग्रेशन, तो साइन का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस nx अपॉन n। ओके, अब ये प्लस साइन था, सो नाउ गिव माइनस साइन। ओके, लेट मी ऐड द स्टूडेंट्स। हाँ, तो ये प्लस साइन था, तो लेट मी गिव माइनस साइन। फर्स्ट का डेरिवेटिव कंटिन्यू करो, सो इट इज -2x। सेकंड का इंटीग्रेशन कंटिन्यू करो, कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन आता है, तो साइन nx अपॉन ये फिर से n आएगा, तो इट बिकम n²। ओके, फिर से फर्स्ट का डेरिवेटिव कंटिन्यू करो, माइनस साइन था तो प्लस होगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव -2। सेकंड का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो ये प्लस हो जाएगा, नीचे आएगा n³। फिर से फर्स्ट का डेरिवेटिव कंटिन्यू करो, बट -2 का डेरिवेटिव अभी जीरो है, इसलिए आगे नहीं जाएगा, तो यहीं पे अपना इंटीग्रेशन एंड होगा, और आपके लिमिट्स थे 0 to 2 पाई। ओके, सो अपर लिमिट इज 2 पाई, लोअर लिमिट इज 0। अभी करते हैं अपर और लोअर लिमिट का कैलकुलेशन। सो इट इज इक्वल टू 1/पाई। नाउ लेट अस कैलकुलेट फॉर अपर लिमिट। अभी फिर से आप देखो, अपर लिमिट के लिए अभी मुझे कैलकुलेशन करने। हाँ, अभी यहाँ पे साइन अगर आता है तो मोस्टली आंसर जीरो होता है, याद रखो, साइन के केस में मोस्टली आंसर जीरो होता है अगर पाई कहीं पे लिमिट है तो। अभी यहाँ पे कॉस इसलिए करना ही पड़ेगा कैलकुलेट। सो एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है 2 पाई, तो क्या क्या होगा लिखो पहला टर्म, सो 4 - 4 पाई स्क्वायर एज एक्स इज 2 पाई इनटू ये क्या होगा माइनस, क्या है cos 2n पाई की वैल्यू, व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos 2n पाई, इट इज 1। अभी हमने अभी डिस्कस किया है, कॉस को अगर कॉस के केस में पाई को अगर आप इवन इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर 1 आता है, तो ये हो गया 1 अपॉन ये n एज इट इज। तो ये पहला टर्म हो गया कैलकुलेट। नेक्स्ट टर्म में यहाँ पे x की वैल्यू 2 पाई, तो यहाँ पे आने वाला है sin 2n पाई, बट sin 2n पाई 0, क्योंकि साइन के केस में पाई को आप किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करो, वो इवन आने दो ऑड आने दो, आंसर 0 आता है, इसलिए 3 टाइम्स माइनस, तो नेक्स्ट टर्म जो होगा वो 0 होगा। ओके, अभी माइनस साइन। ओके, हाँ, यहाँ पे फिर से कैलकुलेट करते हैं, ये 2 एज इट इज, cos 2n पाई इज 1, तो ये होगा 1/n³। ये टोटल हो गया आपका अपर लिमिट। फर्स्ट टर्म का लिखा मैंने,
सेकंड टर्म में माइनस माइनस माइनस, 3 टाइम्स माइनस था तो माइनस आ गया, बट साइन 2n पाई 0 तो ये 0 हो गया। थर्ड में एक माइनस साइन है, 2 एज इट इज, cos 2n पाई क्या है 1 है। अभी करते लोअर लिमिट का कैलकुलेशन। सो नाउ माइनस साइन देके करते लोअर लिमिट का कैलकुलेशन। तो अभी x इक्वल टू 0 आता है। सो व्हेन x इज 0 क्या होगा फर्स्ट टर्म में, x इक्वल टू 0 पुट करो फर्स्ट टर्म में क्या होगा। 1 हाँ, ये 4 माइनस एक्स माइनस में भी 4 x बाय 0 होगा ना, तो वो 4 आने वाला है, केयरफुल विद दिस, क्योंकि x 0 है तो x 0 तो ये 4 रहेगा। cos में क्या है, cos 0 इज 1 सो इट इज माइनस 1 अपॉन n, ये हो गया फर्स्ट टर्म। अभी साइन 0 0 है तो इसलिए सेकंड टर्म नहीं आने वाला, बिकॉज साइन 0 इज 0, सो 3 टाइम्स माइनस माइनस आने दो, बट ये क्या होगा 0 होगा। थर्ड में माइनस 2, अगेन cos 0 इज 1 सो इट गिव्स यू ओनली 1 अपॉन n क्यूब। तो ये हो गया आपका lower limit calculation. Okay, and let us simplify this now. Let me change the color now. हाँ, now simplify this. तो क्या होगा, इक्वल टू क्या आने वाला है बोलो, क्या क्या कैंसिल हो रहा है। Let me add a page after this. Yes. क्या होगा आगे, सो इट इज इक्वल टू दिस 1 बाय पाई एज इट इज, जो आता है वैसे रखना, ज्यादा सिंप्लीफाई में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, तो इसमें आप ज्यादा से ज्यादा 4 कॉमन ले सकते हो, सो माइनस 4 है ना, देन 1 माइनस पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय n होगा। हाँ, ये माइनस 2 अपॉन n क्यूब और ये होगा प्लस 2 अपॉन n क्यूब, कैंसिल हो रहा है, करेक्ट, दिस यू कैन कैंसिल है ना, माइनस 2 अपॉन n क्यूब कैंसिल होगा, ये एक माइनस था ये माइनस, तो ये प्लस हो रहा है तो इसके साथ वो कैंसिल होगा, ये इतना ही टर्म बचेगा। सो क्या बचेगा, प्लस 4 माइनस माइनस प्लस होगा अपॉन n, एंड लेट अस कीप दिस एज इट इज। इससे भी 4 बाई n कॉमन आ सकता है, बट कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द वैल्यू ऑफ bn। ओके, और फिर उसके आगे करना क्या है, जो आता है जैसे आता है वैसे रखो, एंड आफ्टर दिस जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ a नॉट an एंड bn इन द गिवन फंक्शन। तो आपका फंक्शन क्या था, f ऑफ x इक्वल टू a नॉट बाई 2, बट a नॉट क्या है, क्या था a नॉट 8 माइनस 8 पाई स्क्वायर बाई 3 है ना, सो a नॉट बाई 2 था तो ऊपर में a नॉट लिखता हूं, 8 माइनस 8 पाई स्क्वायर बाई 3 by 2, a naught by 2 minus summation n runs from 1 to infinity. Let me write the value of an. an की वैल्यू क्या थी, an क्या था हमारा माइनस 4 अपॉन एन स्क्वायर, सो माइनस 4 अपॉन एन स्क्वायर, और उसके आगे क्या था cos nx प्लस bn क्या था, bn अभी जो आ रहा है वो है, ओके, इट इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड बट ठीक है लिखो वैसे ही। सो इट इज, सर हाँ सर bn की वैल्यू 4 पाई अपॉन n आती है ना। ये कहाँ पे कैंसिल हो रहा है, नहीं होगा ना ये कैंसिल। सर देखिए सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना उनका हाँ हाँ, ये इसके डिनोमिनेटर आगे सेम बोल है। रहे हो क्या, हाँ ये माइनस 4 बाई n ये कैंसिल हो सकता था, ठीक है, लेट्स डू दैट, हो रहा है सिंप्लीफिकेशन आगे, करेक्ट, और रख दिया, ऐसे भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि bn सिंप्लीफाई कितना करने वो आपका कॉल है। इसके आगे वो क्या बोल रहा है कि ये और सिंप्लीफाई होगा, सो लेट्स डू दैट। ओके, सो इट इज इक्वल टू ये क्या होगा, माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस 4 अपॉन n आएगा, सेपरेट सेपरेट भी कर रहा हूं, सो माइनस 4 बाई n, फिर ये आएगा प्लस है ना 4 पाई स्क्वायर बाय n, हो रहा है सिंप्लीफाई तो कर देते, देन लास्ट में होगा 4 बाई n। तो अभी अब माइनस 4 बाई n प्लस 4 बाई n कैंसिल होगा, पाई भी कैंसिल होगा, सो क्या आंसर आ रहा है 4 अपॉन n आ रहा है, इजी हो रहा है इसलिए कर देते हैं, ठीक है, पाई पाई कैंसिल होगा, सो 4 पाई ना, 4 पाई, सॉरी, करेक्ट है देखो, इज इट 4 पाई बाई n नाउ, यस सर। ओके, सो हाँ, तो ये भी लिख दिया तो भी आप आपको मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन का आपका कॉल है। सो ये आंसर आ गया आपका 4 पाई बाय n, क्योंकि सिंप्लीफाई हो रहा था, और इनटू क्या है साइन nx, इनटू साइन nx, एंड ये a नॉट था, इसको भी मैं कलर चेंज करके रखता हूं तो आपको समझ में आएगा। तो मैंने क्या किया है, आपने ऑलरेडी ऊपर सीरीज लिखी थी, देखो ये सीरीज थी, मैंने इस सीरीज में बस क्या किया है, ए नॉट की वैल्यू रख दी है, ए नॉट की वैल्यू रख दी है,
an की वैल्यू रख दी और bn की वैल्यू रख दी है, तो मुझे ये मिला है, बस कुछ नहीं किया। लेट मी जस्ट पुट a नॉट, an एंड bn, बाकी चीजें एज इट इज रखो, कुछ ज्यादा आगे सिंप्लीफाई करने की भी जरूरत नहीं है। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आज, तो आपको धीरे धीरे ये सारी चीजें समझ में आ ही जाएगी। ठीक है, तो अभी थोड़ा नेक्स्ट इंटरवल का बाद में लेते हैं, एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ, सिंपल लेता हूँ। ठीक है, हाँ, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 राइट नाउ, फाइंड सर मुझे एक डाउट था यस यस बोलो। सर, ये जो फोरियर सीरीज है ये सिर्फ पीरियोडिक फंक्शन के लिए चाहिए ना? तो करेक्ट, 4 - x तो पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, तो उसके लिए कैसे क्या हमने होता है सॉल्व ये, किया? हाँ हाँ मैं बोलता हूँ, ये पीरियोडिक में कन्वर्ट होके आता है आपको, अगर नॉन पीरियोडिक भी फंक्शन है ना, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने, ये अगर आर पे होता ना, ये अगर इंटरवल नहीं रहती, इसके जगह पे आर होता ना, तो आप जो बोल रहे हो वो करेक्ट है, बट आर नहीं है ना मेरे पास क्या है, 0 to 2 पाई इंटरवल है। इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, 0 to 2 पाई इंटरवल में 4 - x² का ग्राफ प्लॉट करूंगा, करेक्ट, और फिर वही ग्राफ हाँ, में आगे सारे इंटरवल में पेस्ट कर दूंगा। समझ में आ रहा है? अच्छा अच्छा। हाँ, मैं पीरियोडिक में कन्वर्ट कर रहा हूं। ओके, मैं आपको नीचे दिखाता हूं, फॉर एग्जाम्पल, ये वैसे आपको चेक करना नहीं है सिलेबस में, बट मैं आपको बोल रहा हूं, जैसे कि आ, आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पता है, इसका ग्राफ क्या आता है, ये आता है, करेक्ट, मतलब एफ ऑफ हाँ एक्स सर। इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ ये आता है, ये पीरियोडिक है क्या? नहीं है नो ना, सर। ग्राफ नहीं। कहीं पे भी कॉमन ग्राफ रिपीट नहीं हो रहा है, बट अगर ये ग्राफ मैं आपको दे रहा हूं आर पे, इसलिए नॉन पीरियोडिक है, पीरियोडिक नहीं है। बट मैं आपको कैसे एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको 0 to 2 पाई पे ही दूंगा ये, पीरियोडिक कंसिडर करके, तो 0 to 2 पाई यहां पे होगा, यहां पे समवेयर 2 पाई, तो इन बिटवीन 0 to 2 पाई ग्राफ क्या आ रहा है, ऐसा ही कुछ तो होगा फंक्शन का, करेक्ट है। यस अभी सर। मैं क्या करूंगा, ये सेम ग्राफ आगे में रिपीट करूंगा, तो 4 पाई के लिए भी क्या होगा, सेम होगा, सेम होगा। 6 पाई के लिए भी क्या होगा, सेम होगा, तो हो गया पीरियोडिक में कन्वर्ट। तो मैंने ग्राफ वही रखा है, बट अगर मैं इंटरवल पे लेता हूं, तो वो वही ग्राफ में आगे सारे वैल्यूज के लिए रिपीट कर दूंगा, हेंस इट बिकम पीरियोडिक। इट्स क्लियर ना? सर ऐसा होगा तो हम कौन से भी फंक्शन के लिए यस फोरियर ना, सीरीज कर निकाल सकते हैं ना, सकते हैं? इसलिए इसलिए अगर, हाँ, बट ये इंटरवल पे हो सकता है, नॉट ऑन आर, तो ऐसा किसी भी फंक्शन को आप पीरियोडिक में कन्वर्ट कर सकते हो, इसलिए आपको एग्जाम में अच्छा। सारे क्वेश्चन इंटरवल के ही आते हैं, आर पे करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो हाँ एनी समझा फंक्शन, सर। यस। हाँ, एनी फंक्शन कैन बी पीरियोडिक विद दिस लॉजिक। तो कोई भी फंक्शन, जैसे ई रेस टू एक्स की भी फोरियर सीरीज आप कैलकुलेट कर पाओगे, अगर वो इंटरवल पे डिफाइन है, तो ये सारी चीजें अलाउड है। ओके, तो ये मतलब क्या होगा, अगर पीरियोडिक फंक्शन का उसके रिस्ट्रिक्शन है, तो हम क्या कर रहे हैं, पीरियोडिक में कन्वर्ट करके सॉल्व कर रहे हैं, बट फोरियर सीरीज हम किसी भी फंक्शन की कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स टेक वन इजी एग्जांपल, क्विक कवर करता हूं, फाइंड फोरियर सीरीज एक्सपांशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स देता हूं मैं अभी आपको, बट मैं इंटरवल थोड़ी बहुत चेंज करता हूं, ऐसे इंटरवल अभी तक मैंने नहीं लिए। ओके, सो एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स डिफाइन ऑन द इंटरवल 0 to 4। ओके, अभी थोड़ा फास्ट करते, सो इन सोल्यूशन, चल पहले करना क्या है, यल कैलकुलेट करो, सो एल इज इक्वल टू बी माइनस ए बाय 2। ओके, सो इट इज 4 माइनस 0 बाय 2, तो एल की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 आ रही है। ठीक है, अभी फॉर्मूला लिखो, क्या है फॉर्मूला फोरियर सीरीज का, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाय 2 प्लस समेशन n runs from 1 to infinity an cos n pi x upon l, let me save the file, हाँ, plus bn sin n pi x upon l, हो गया। अभी क्या करो, l की वैल्यू पुट करो, सो इट इज इक्वल टू a नॉट बाय 2 प्लस समेशन n रन्स फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, अभी क्या करते, l की वैल्यू 2 पुट करते, तो cos, अभी यल कैंसल नहीं होगा यहाँ पे, अभी वो रहेगा, सो इट इज एक्चुअली n पाई x बाय 2 होगा, एंड प्लस bn इज एक्चुअली
साइन n पाई x बाय 2। क्लियर हो रहा है यहां तक सबको? एनी डाउट अप टू दिस स्टेप नाउ? इज दिस क्लियर? फिर से यल कैलकुलेट किया, सीरीज में यल पुट किया। नाउ लेट्स कैलकुलेट ए नॉट। वन बाय वन करते कैलकुलेट। सो ए नॉट पहले कैलकुलेट करते। फॉर्मूला क्या है? 1 बाय यल c2 c प्लस 2l f ऑफ x dx। ठीक है, सारे वैल्यूज पुट करो। इंटरवल आपकी है 0 to 4, सो इट इज इक्वल टू व्हाट? 1 बाय यल की वैल्यू क्या है? 2, सो 1 बाय 2 इंटीग्रेशन। इंटरवल क्या है? 0 to 4, तो 0 to 4। फंक्शन क्या है? x, सो x dx। करेक्ट? सो लेट्स सॉल्व दिस इंटीग्रल। सो विच इज इक्वल टू 1 बाय 2 एज इट इज। x का इंटीग्रेशन क्या है? x स्क्वायर बाय 2 एंड लिमिट्स फ्रॉम 0 to 4। पहले अपर लिमिट पुट करो। सो 1 बाय 2 एज इट इज। हम पहले अपर लिमिट पुट करते। अपर लिमिट क्या आएगा? 4 का स्क्वायर विच इज 16, सो 16 बाय 2। अभी लोअर लिमिट पुट करो विच इज 0। ओके, एंड नाउ डू द कैलकुलेशन। सो इट इज व्हाट? 4। करेक्ट है? प्लीज चेक माय कैलकुलेशन। इज दिस करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो Yes. तो ए नॉट आ गया। अभी करते ए एन कैलकुलेट। नंबर के केस में भी इजी होता है, इतना टफ नहीं है। सो ए एन कैलकुलेट करते। सो ए एन इज इक्वल टू, फिर से फॉर्मूला लिखो, 1 बाय यल c2 c प्लस 2l f ऑफ x cos n पाई x अपॉन l dx। ठीक है, एंड नाउ पुट द वैल्यू ऑफ l एंड फंक्शन, सारे वैल्यूज इसमें पुट करो। सो यल आपका था 2, तो ये हो गया 1 बाय 2। इंटरवल आपकी थी 0 to 4, तो ये हो गया 0 to 4। फंक्शन आपका था x इंटू कॉस, यहाँ पे रहेगा n पाई x बाय यल क्या था? 4, सो 4, सॉरी यल क्या था? 2 dx। डन। ओके, अभी क्या होगा? प्रोडक्ट में फंक्शन आ रहा है, फिर से आपको जनरलाइज रूल ऑफ बाय पार्ट्स यूज करना होगा। ओके, सो फाइंड अ फंक्शन जिसका डेरिवेटिव 0 हो रहा है। तो आपको दिखाई दे रहा है x इज अ फंक्शन हुज सेकंड डेरिवेटिव इज 0, सो ये इजी होगा। तो इसलिए ये होगा आपका u and this become your v। now apply generalized rule of by parts, so it is equal to 1 by 2 as it is। so generalized rule of by parts के लिए आपको फर्स्ट टर्म को वैसे ही रखना है। so let me keep x as it is and now take the integration of second। तो cos का इंटीग्रेशन है प्लस साइन। so what is integration of cos n pi x by 2? क्या आएगा इंटीग्रेशन? Sin n pi x by 2 into 2 by n pi इनटू और डिवाइडेड बाय? into 2 by n pi नहीं, divided by n pi by 2। हाँ डेरिवेटिव में इनटू आएगा, बट ये इंटीग्रेशन है ना, तो इंटीग्रेशन इस में सर क्या आएगा? रेसिप्रोकल लिया मैंने। हाँ, डिवाइडेड बाय n पाई बाय 2। क्लियर? इज दिस क्लियर? इंटीग्रेशन है ये, कॉस का इंटीग्रेशन साइन डिवाइडेड बाय n पाई बाय 2। Yes, sir. ओके, एंड नाउ जस्ट कंटिन्यू। ये ऐसे ही रखो, दिखने में आपको ये बाद में सिंप्लीफाई करने को स्कोप मिलेगा, अभी ज्यादा इसमें डिस्टर्ब मत करो। एंड नाउ जस्ट लेट मी ऐड अ पेज आफ्टर दिस। हाँ, अभी क्या करना है? ये प्लस साइन था, नाउ जो माइनस साइन। एक्स का डेरिवेटिव क्या है? 1। साइन का इंटीग्रेशन क्या है? माइनस कॉस n पाई x बाय 2, और नीचे क्या होगा? फिर से n पाई बाय 2 आएगा, बट ऑलरेडी एक n पाई बाय 2 था, सो इट गिव्स यू n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय क्या होगा? 4। करेक्ट है? एंड नाउ इन नेक्स्ट स्टेप माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0, इसलिए यहीं पे चेयर स्टॉप होगी। एंड योर लिमिट्स फ्रॉम 0 to 4। देखो समझ में आ रहा है कि ये कुछ इश्यू है तो बोलो। और ये स्टेप्स रिपीट करो ना एक बार, ये वाला स्टेप। हाँ ठीक है। u को वैसे रखना है आपको। v का क्या इंटीग्रेशन? मुझे आप बोलो cos k इंटू एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? k इज अ कॉन्स्टेंट, cos k x का इंटीग्रेशन क्या है? साइन k x डिवाइडेड बाय क्या है? k। बट यहाँ पे k क्या है हमारा? n पाई बाय 2 है ना, तो क्या इंटीग्रेशन आएगा? साइन n पाई बाय 2 x अपॉन n पाई बाय 2। इज दिस क्लियर नाउ? Yes, sir. ओके, यस सर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? x का डेरिवेटिव आएगा विच इज 1, ये प्लस था तो ये माइनस साइन, x का डेरिवेटिव आएगा 1। ठीक है, साइन का इंटीग्रेशन क्या है? साइन का इंटीग्रेशन क्या है? माइनस कॉस है ना,
आप मुझे ये बोलो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन के एक्स, इट इज एक्चुअली माइनस कॉस के एक्स अपॉन के, X upon है ना। तो ये आएगा माइनस कॉस एन पाई बाय एक्स बाय टू अपॉन अगेन एन पाई बाय टू, बट वहां पे पहले ही एक एन पाई बाय टू था, सो दोनों का प्रोडक्ट होगा, तो क्या आएगा ये एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 4. Okay, sir. समझा. Okay, Yes, sir. and now just put upper limit and lower limit. So let's do it. So equal to 1 by 2. पहले हम अपर लिमिट पुट करते, हाँ अपर लिमिट है x इक्वल टू 4. अब डालो यहाँ पे x की जगह पे 4 डालो, 2 4 से कैंसिल होके यहाँ पे क्या मिलेगा, कैन यू टेल मी? x क्या रहेगा यहाँ पे, साइन 2n पाई, बट व्हाट इज साइन 2n पाई? 0. तो इसलिए पहला टर्म आएगा 0. अभी आते सेकंड टर्म पे, माइनस माइनस प्लस है, cos 0 1 है, तो ये होगा 1 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 4. इसको बाद में ऊपर लेते. नाउ कैलकुलेट फॉर लोअर लिमिट. तो लोअर लिमिट x इक्वल टू 0 है, यहाँ पे x प्रेजेंट है तो ये 0 होगा, फिर से माइनस माइनस प्लस, एंड cos 0 क्या होता है, 1 होता है, तो ये फिर से क्या आएगा 1 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 4. देखो ये करेक्ट है क्या एक बार. दिस इज फॉर अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट. चेक करो. हाँ अभी क्या हो रहा है, कैंसिल ही हो रहा है ना, 1 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 4. ये प्लस साइन है, ये माइनस साइन है, टर्म सेम ही है, तो कैंसिल होगा. सो व्हाट इज द आंसर, 0. क्लियर, क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये इजी जाएगा. सो ए एन इज 0. 0 भी आ सकता है, कोई इशू नहीं. अभी क्विकली कैलकुलेट करते हैं bn. सो bn का फॉर्मूला है 1 बाई एल c2 c प्लस 2l f ऑफ x साइन n पाई x बाय l dx. वैल्यूज पुट करते 1 बाई 2 0 to 4, क्या था फंक्शन हमारा, x था, सो x इंटू साइन n पाई x बाय 2, है ना. नाउ लेट्स अप्लाई जनरलाइज रूल ऑफ बाय पार्ट्स. ये होगा मेरा u, दिस इज माय v. अप्लाई करते हैं रूल. सो रूल में क्या होता है, फर्स्ट टर्म को वैसे ही रखो. सो लेट मी सेव अगेन. हाँ, लेट मी कीप x एज इट इज. सेकंड का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस, सो माइनस कॉस n पाई x बाय 2 डिवाइडेड बाय n पाई बाय 2. ये केयरफुली करो, ये अगर आप मिस्टेक करोगे तो रॉन्ग होगा. एंड नाउ प्लस साइन था, सो गिव माइनस साइन, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा. x का डेरिवेटिव आता है 1, cos का इंटीग्रेशन आता है प्लस साइन, तो साइन n पाई x बाय 2, फिर से नीचे n पाई बाय 2 आएगा, बट ऑलरेडी वहां पे एक था, सो इट गिव्स यू n पाई स्क्वायर बाय 4. और हमारा ब्रैकेट कंप्लीट, लिमिट्स थे 0 to 4. सिमिलर है, जैसे ऊपर का था वैसा ही आ गया, कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है. नाउ पुट अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट. सो इट इज इक्वल टू 1 बाय 2. अभी इसमें पुट करते तो x की वैल्यू क्या है, 4 है ना, माइनस यहाँ पे क्या आएगा, cos 2n पाई आएगा, है ना. एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos 2n पाई, 1. बहुत बार हमने डिस्कस किया अभी. ओके, सो इट इज माइनस 1 अपॉन 2. ये हो गया पहला टर्म. अभी सेकंड टर्म में क्या आने वाला है, x इक्वल टू 4 के लिए sin 2n पाई, करेक्ट है, बट विच इज 0. आप यहाँ पे x इक्वल टू 4 पुट करते हो, यहाँ पे आएगा sin 2n पाई, बट sin 2n पाई इज 0, इसलिए सेकंड टर्म आपका आएगा 0. तो ये हो गया अपर लिमिट का कैलकुलेशन. माइनस अभी लोअर लिमिट में x 0 है, x 0 है तो पहला टर्म 0 होगा, एंड साइन 0 आपको पता है ये 0 है, तो इसलिए सेकंड टर्म भी 0 होगा. डन. ये मैं फास्ट कर रहा हूं, बट आपको ये मैं कितने भी आर भी एक्सप्लेन करूं, यू नीड टू वर्क आउट ऑन दिस. आप खुद से एक बार देखो कि आपको सच में कैलकुलेशन हो रही कि नहीं. ओके, और इनमें वैल्यूज में लिख रहा हूं आपको रेफरेंस के लिए, अगर आप बाद में भी इसको रेफर करते हो, यू विल कम टू नो कि साइन 0 इज 0, दैट्स व्हाई द सेकंड टर्म इज 0. cos 2n पाई इज 1, दैट्स व्हाई दिस वैल्यू इज 1. sin 2n पाई इज 0, दैट्स व्हाई दिस वैल्यू इज 0. सो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी. ओके, एंड नाउ
राइट डाउन द सर फाइनल वहां पे यस 2/n पाई कहाँ चला गया? 2/n पाई वो कहाँ पे था? फोर का अपर लिमिट के अपर कैलकुलेशन में लिमिट, हाँ फर्स्ट टर्म उसमें यहाँ माइनस हाँ सी अपर लिमिट में यहाँ पे देखो कॉस का मैंने लिखा है, ये 4 आ गया। cos 2n पाई क्या है? x इक्वल टू 4 डालो तो यहाँ पे cos 2n पाई आता है। cos 2n पाई क्या है? 1 है, तो ये हो गया -1 बाय हाँ सॉरी ये रह गया, यही बोल रहे हो ना आप? हाँ ये सर वहां पे ये डिनोमिनेटर रह नहीं गया आया। ये रह गया था, लेट मी करेक्ट इट। ओके एंड हाँ आई थिंक लोअर लिमिट के टाइम पे तो नहीं आएगा, ठीक है। देखो और कुछ मिस्टेक है, एंड फॉर लोअर लिमिट x की वजह से ये 0 होगा और sin 0 की वजह से ये 0 होगा, तो इसलिए कुछ नहीं आएगा। आई थिंक नाउ दिस इज करेक्ट, ठीक है। सो क्या आएगा फाइनली? सो फाइनली -4 ये 2 वैसे भी कैंसिल होगा इस 2 के साथ, सो -4 अपॉन n पा। चेक करो एक बार, कुछ भी करेक्शन है तो बोल दो मुझे। इज दिस करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. तो अब ये दो Sir. एग्जांपल्स हमने कवर किए, क्लास में भी कुछ डिवीजन में कुछ इस पे मैंने कवर किया है, ठीक है। उतना अभी सफिशिएंट है। ओके ये हो गया पहला टाइप। अभी आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा लेंदी होता है कुछ जगह पे, फंक्शन जितना कॉम्प्लिकेटेड हो उतना फिर ये लेंदी हो जाता है। ओके अभी इसमें ही एक और टाइप आता है जो होता है इंटरवल के फंक्शन। ओके सो हम 3 टाइप में करने वाले, एक टाइप हमने अभी कवर किया, सेकंड हम इंटरवल के करेंगे। लास्ट जो पॉइंट है हमारा आज के डिस्कशन का वो होगा इवन एंड ऑड फंक्शन, तो वो करके हम स्टॉप करेंगे। चलो अभी आते हैं सेकंड टाइप पे। ये अगर इतना अगर आपको समझ में आएगा तो इसके आगे फास्ट होने वाला है। ओके तो क्योंकि बेसिक आपका कवर हो चुका है अभी, तो अभी सेकंड जो टाइप है मैं इससे टाइप के हिसाब से आपको दे रहा हूं। ओके टाइप 2, इसके ऊपर का टाइप 1 ही था, मैं करेक्ट कर दूंगा बाद में। दिस इज व्हाट एग्जांपल्स बेस्ड ऑन इंटरवल, सॉरी फंक्शन एग्जांपल्स कंटेनिंग इंटरवल। क्या मीनिंग है इसका आपको समझ में आएगा, कंटेनिंग इंटरवल्स। इससे पहले आपको एक सिंगल फंक्शन आता था कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का एक्स की फोरियर सीरीज कैलकुलेट करो, या तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर की फोरियर सीरीज कैलकुलेट करो। अब ये थोड़ा चेंज होगा, अभी आपको वो फंक्शन इंटरवल के फॉर्मेट में भी आएगा। ओके जैसे कि नीचे मैंने नोट डाउन करके रखे, हाँ मैं आपको क्या करता हूं, ये मैं आपको सॉल्व करके देता हूं, ये थोड़ा टफ है क्योंकि एक्स स्क्वायर है, ये आपको एज ए होमवर्क ट्राई करना है, ठीक है। सो लेट्स ट्राई दिस 2x माइनस एक्स स्क्वायर का 0 to 3 पे। हाँ चलो अभी एग्जांपल लिख लेता हूँ प्रॉपर। सो क्वेश्चन 1, फाइंड फोरियर सीरीज एक्सपांशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, क्या था वो, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x minus x square when x lies between 0 to 3 and it is 0 when x lies between 3 to 6, ठीक है। डन, इतना ही क्वेश्चन आपको होगा। अभी ऐसे केसेस में कैसे करना है, कैसे फोरियर सीरीज कैलकुलेट करनी है वो बस हमें देखना है। हाँ ये फंक्शन सबको समझ में आ गया। इस फंक्शन का मीनिंग क्या होता है कि वो जो एफ ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू 2x माइनस एक्स स्क्वायर होगी, कहां पे होगी, ओनली फॉर दिस इंटरवल। कौन सी इंटरवल, 0 to 3 पे। रिमेनिंग केस में उसकी वैल्यू क्या है, 0 है। करेक्ट है, करेक्ट और नॉट। तो इसका मतलब बेसिकली इसका मतलब यही है कि आपको इतना ही गिवन है ना। रिमेनिंग केस में वैल्यू 0 है तो कुछ ज्यादा मैटर करता ही नहीं, आपको इतना ही गिवन है। तो फिर भी इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैं आपको शॉर्टकट से नहीं बोलता हूं, प्रॉपर वे से ही बोलता हूं, ठीक है। फंक्शन तो समझ में आ गया, जब आपकी इंटरवल 0 to 3 होगी तब आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर। जब आपके इंटरवल 3 to 6 होगी आपके पास वैल्यू क्या है, 0 है। पहला क्वेश्चन मेरा ये है, ये जो गिवन फंक्शन है इसकी इंटरवल क्या है। यस व्हाट इज इंटरवल ऑफ अ गिवन फंक्शन हियर, एफ ऑफ एक्स की इंटरवल क्या है। यस 0 to 3. 0 to 3 है या 0 to 6 है,
0 to 6 0 to 0 to 6. 0 to 6 0 to 6. इसके लिए डिफाइन करके दिया है, जीरो है ओके, बट वो मैंने डिफाइन करके दिया, तो एक्चुअली यहाँ पे इंटरवल क्या है 0 to 6 है। तो हमेशा इंटरवल कैसे काउंट होगी, पहला पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक। ये पहला पॉइंट समझो यहाँ पे कि फंक्शन की इंटरवल कैसे काउंट होगी, फर्स्ट पॉइंट कंसिडर करो डायरेक्टली लास्ट पॉइंट। अभी कैलकुलेट करते हैं एल, तो एल क्या होगा 3. b minus a by 2 that is 6 minus 0 by 2 which is 3। अगर आपने गलती से भी यहाँ पे 0 to 3 लिखा, यल क्या आएगा 3 by 2. 3 by 2 विच इज Yeah, टोटली 3 by 2. रॉन्ग, मतलब आगे आप कुछ भी करो सारी चीजें रॉन्ग जाएगी। पहला पॉइंट समझ में आ गया है, इंटरवल हमेशा कैसे लेनी है, जो भी फंक्शन होगा पहला पॉइंट ले लो, डायरेक्टली लास्ट पॉइंट ले लो, ये होती है आपकी इंटरवल। क्योंकि यल चेंज हो गया ना, एवरीथिंग विल बी रॉन्ग, आगे कुछ भी करो कैलकुलेशन मार्क्स कुछ नहीं मिलेंगे, जीरो ही मिलेंगे, क्योंकि यल ही रॉन्ग है ना। ओके, सो एल इज 3। नाउ लेट्स राइट द फोरियर सीरीज क्विकली। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a naught by 2 plus summation n runs from 1 to infinity an cos of n pi x by l, but l is ठीक है l plus bn sin of n pi x by l, ठीक है। Now put the value of l which is 3, so let me just write it fast। So a naught by 2 plus summation n runs from 1 to infinity an cos n pi x by 3 and plus bn sin of n pi x by 3। Done। Now let's quickly calculate a naught। अभी आप देखो इसके आगे थोड़ा चेंज होगा, a naught में कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं। सो a naught is equal to 1 by l, please focus here, this is very important, c to c plus 2l f of x dx। What is l? L is 3, so 1 by 3। Now my question is what is interval? इंटरवल क्या है आपके फंक्शन की, क्या इंटरवल है 0 to 6. 0 to 6, तो यहाँ पे 0 to आना 6 चाहिए 0 to 6 पहले। सो 0 to 6, अभी 0 to 6 में आपको फंक्शन गिवन है क्या डायरेक्टली, नहीं, 0 to 6 को आपने क्या किया है, दो पार्ट में डिवाइड किया है ना, यस और नो। 0 to 6 को आपने दो पार्ट में Yes. डिवाइड किया, इसलिए पहले मैं इसको एफ ऑफ एक्स से लिखता हूं। क्यों मैंने फंक्शन नहीं लिखा है, क्योंकि 0 to 6 का जो फंक्शन है, 0 to 6 पे ऐसा कोई फंक्शन डिफाइन नहीं है। 0 to 6 को आपने कैसे किया है, डिवाइड किया है। कैसे डिवाइड किया है, फर्स्ट आपने क्या लिया है 0 to 3 लिया है, 0 to 3 पे फंक्शन क्या है आपका 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर आगे आपने क्या लिया है 3 to 6 लिया, 0. एंड वहां पे फंक्शन क्या है आपका 0। क्लियर हो गया ये सबको, ये कैसे लिखा है मैंने, एनी डाउट इन दिस स्टेप। No, sir. इंटरवल 0 to 6 Yeah. थी, बट 0 to 6 की जो इंटरवल है ना, ये दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, एक 0 to 3 था, उसके आगे 3 to 6 था, इसलिए आपका इंटीग्रेशन भी दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। वन इज फ्रॉम 0 to 3 एंड व्हेन योर इंटरवल इज फ्रॉम 0 to 3 योर फंक्शन इज 2x minus x square, व्हेन योर इंटरवल इज फ्रॉम 3 to 6 योर फंक्शन इज 0। तो ये तो 0 आ गया, तो इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं आएगा, इतना ही आपको करना है। सो 1 by 3, ओके, तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x minus x square इज x square, x का इंटीग्रेशन x square by 2, 2 कैंसिल होगा, माइनस x cube by 3 एंड लिमिट्स फ्रॉम 0 to 3, पुट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आएगा ये 1 by 3, दिस इज एक्चुअली 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 27 ना, यहाँ पे 9 कर सकते हैं क्योंकि वो फिर Yes, sir. simplify 27 होगा। by 3. हाँ, कैंसिल ही हो रहा है क्या, है ना, ठीक है, Yes, sir. एंड माइनस 0, सो व्हाट इज द वैल्यू 0, 0. ठीक है, ए नॉट इज 0 आने दो, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर हो, ये 3 की वजह से वैसे भी वो 0 हो रहा है, सो डन। सो ए नॉट इज 0। अभी कैलकुलेट करते हैं एन। एन का फॉर्मूला है 1 by l c to c plus 2l f of x
cos n pi x अपॉन l dx। ये सारे वैल्यूज पुट कर देते, 1/3, इंटरवल थी 0 to 6, बट अभी 0 to 6 पे फंक्शन नहीं है, इसलिए मैं f of x पहले वैसे ही रखता हूं। एंड यहाँ पे क्या होगा, cos n pi x by 3। ओके, 0 to 6 पे फंक्शन नहीं था, बट 0 to 6 को अगर आप दो पार्ट में डिवाइड करते तो फंक्शन आ जाता है, ठीक है। इसलिए अभी मैं क्या करूंगा, इन नेक्स्ट स्टेप आई विल डिवाइड माय इंटरवल इन 2 पार्ट, है ना, 2 पार्ट में मैं डिवाइड करूंगा। चलो, सो इट इज इक्वल टू 1/3 एज इट इज। तो अगर मैं इंटरवल लेता हूं 0 to 3, तो फंक्शन क्या है मेरे पास, 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो मेरे पास फंक्शन क्या है, अगर मैं 0 to 3 लेता हूं तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में डालता हूं, इनटू cos n pi x pi by x 3। ओके, ये हो गया पहला। एंड सेकंड केस में अगर मैं इंटरवल लेता हूं 3 to 6, फंक्शन क्या है मेरे पास 3 to 6 के लिए, क्या है फंक्शन, क्या है, 0 जीरो है। तो ये एक्चुअली Zero. लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये जीरो ही आता है, इसलिए अभी मैं दिखा रहा हूं बस आपको। ये क्या आएगा, cos n pi x by 3 डन, ये होता है। तो 0 to 6 को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, तब जाके मेरे पास फंक्शन आ गया। एंड इफ आई सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट ओनली वन इंटीग्रल। तो इसको आगे, इसके आगे आपको क्या मिलेगा, 1/3 इंटीग्रेशन 0 to 3 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू cos n pi x by 3 इंटू dx। तो जस्ट सॉल्व दिस वन इंटीग्रल, क्योंकि सेकंड तो क्या है, जीरो ही है। तो अभी इस एग्जांपल में मैं आपको बस an देने वाला हूं, bn आप खुद कैलकुलेट करो और फिर मुझे क्लास में बोलो कि आपका bn का आंसर क्या आता है। ओके, एज वी हैव वेरी लेस टाइम रिमेनिंग, तो इसमें बस an में क्विकली कैलकुलेट करके दे रहा हूं। सो नाउ दिस बिकम योर u एंड दिस बिकम योर v, क्योंकि इसका डेरिवेटिव जीरो हो रहा है। लेट्स अप्लाई जनरलाइज रूल ऑफ बाय पार्ट्स। सो 1/3 एज इट इज, पहला टर्म वैसे ही रखो, सेकंड का लेना है इंटीग्रेशन विच इज साइन n pi x by 3, फिर आता है अल्टरनेटिवली साइन, तो माइनस साइन, इसका डेरिवेटिव आता है 2 माइनस 2x, फिर इसका आता है माइनस, सॉरी क्या रह गया, डिवाइड करना रह गया ना, होल upon डिवाइडेड n बाय n pi by 3, सॉरी इंटीग्रेशन चेन रूल रह गया था। हाँ, सो कॉस का इंटीग्रेशन साइन n pi x by 3 अपॉन n pi by 3। हाँ, अभी आते हैं आगे, तो प्लस साइन था तो माइनस साइन, सो 2 माइनस 2x, साइन का इंटीग्रल है माइनस कॉस, और फिर से नीचे n पाई बाई 3 आएगा, बट ऑलरेडी एक था वहां पे, सो इट इज एक्चुअली n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, ऐसे रखता हूं, ठीक है। हाँ, अभी एक और बार जाएगा ये, जो ना, तो माइनस साइन था तो प्लस होगा, तो ये क्या होगा, अभी -2 होगा, कॉस का प्लस साइन, सो n पाई x बाई 3, फिर से नीचे n पाई बाई 3 आएगा, तो ये बनेगा n क्यूब पाई क्यूब अपॉन 3 क्यूब। यही पे स्टॉप होगी, कि -2 का डेरिवेटिव आगे जीरो होगा। एंड यूर लिमिट्स फ्रॉम, क्या थे लिमिट्स आपके, 0 to 3 थे, है ना, 0 to 3, 0 to 3। नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज, चेक करो क्या क्या वैल्यूज वो आपको दे रहा है अपर एंड लोअर लिमिट के लिए। तो करते हैं 1 by 1 कैलकुलेट। सो इट इज इक्वल टू, बाहर था आपका 1/3, अभी मुझे कैलकुलेशन करने अपर लिमिट के लिए। चलो x इक्वल टू 3 पुट करते हैं, तो यहाँ पे आते, व्हेन आई पुट x इक्वल टू 3, यहाँ पे क्या होगा, बोलो, साइन क्या आने वाला है, n पाई आने वाला है, करेक्ट है, हाँ सर Zero. साइन n पाई क्या है, 0 जीरो सर है। Zero. तो आते हैं यहाँ पे, पहला टर्म मैंने कैलकुलेट किया विच इज 0, आते हैं सेकंड टर्म पे, यहाँ पे करते हैं x इक्वल टू क्या है, 3 है, तो ये क्या बनेगा, ये माइनस है, ये माइनस है, पहले तो प्लस दे दो, माइनस माइनस प्लस हो गया। अभी चलो ब्रैकेट का कैलकुलेशन करते हैं, तो ये है 6, सो 2 माइनस 6 इज -4, तो पहले वो -4 लिख लेते -4 हैं, -4। हाँ, अभी कॉस में आते हैं,
कॉस में क्या होगा, एक्स एक्स इक्वल टू 3 कैंसिल होगा, यहाँ पे मिलेगा कॉस एन पाई। व्हाट इज कॉस एन पाई? वन हाँ, वन वन आएगा। यन क्या आपको वन पता है क्या? यन माइनस यन प्लस इवन भी आ माइनस सकता है, हाँ यन इवन भी आ सकता है और भी आ सकता है, बिकॉज यन टेक्स वैल्यूज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो ये क्या जाएगा, -1 रेस टू यन ना, यस करेक्ट ना? सर। जब यन 1 होगा तो ये -1 देगा, बट व्हेन एन यस इज 2 ये +1 देगा ना आपको वैल्यू, इसलिए आंसर क्या जाएगा इसका, -1 रेस टू यन। करेक्ट यन और नॉट? ओके, जी सर तो ये वैसे आएगा, तो -1 रेस टू यन एंड होल डिवाइडेड बाय क्या है वो, यन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर। आते थर्ड टर्म पे, बट थर्ड टर्म पे क्या है, साइन एन पाई आने वाला है, क्योंकि x इक्वल टू 3 कैंसिल हो 0 जाएगा तो साइन एन पाई 0, इसलिए थर्ड टर्म नहीं आने वाला। सो प्लस करके मैं क्या करता हूँ, 0 करता हूँ। ये हो गया मेरा अपर लिमिट का कैलकुलेशन। अभी माइनस करके आते लोअर लिमिट पे। लोअर लिमिट क्या है, x इज 0। चलो, x 0 पे साइन 0 क्या है, 0, पहला टर्म 0। 0 सेकंड टर्म पे आते, अरे सॉरी, हाँ, सेकंड टर्म पे आते, x 0 है, ये माइनस माइनस में पहले प्लस कर देता हूं, तो ये पहले प्लस किए, ब्रैकेट में क्या मिलेगी वैल्यू, 2 - 2x में x 0 डाला तो 2 रहेगा, एंड cos 0 क्या है, 1 है, सो 1 1 आ अपॉन, जाएगा फिर से रहेगा n एन स्क्वायर स्क्वायर पाई स्क्वायर पाई बाय स्क्वायर 9 बाय 3 स्क्वायर। लास्ट में फिर से साइन है, तो क्या आएगा, 0 आएगा। ये हो गया मेरा अपर और लोअर लिमिट का कैलकुलेशन। नाउ जस्ट सिंप्लीफाई दिस, जो आता है उसको सिंप्लीफाई कर। सो द फाइनल आंसर इज, let me add the students, हाँ, so the final answer is 1/3, sorry, 1/3। क्या क्या होगा इसमें बोलो, क्या कॉमन आ रहा है, वो मैं कॉमन ही लेता हूँ, 1/3 तो बाहर था ही, एक ही लाइन पे लेता हूँ आंसर। क्या कॉमन आ रहा है, 9 2 बाय अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 9 9 अपॉन एन स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, तो क्या रहेगा ब्रैकेट में, सर 2 भी आ रहा है कॉमन 2 भी आ रहा है, तो 18 कर दो यहाँ पे डायरेक्टली, तो ये जी 3 से सर डिवाइड हाँ भी सर होगा, तो 6 कर दो, करेक्ट, विल इट बी ओके ना? यस सर ओके, यस सर यस सर। सो फिर क्या रहेगा, अभी ये जिनको नहीं समझ में -2 आता आप लिख करके देखो एक बार। ओके, तो क्या रहेगा, अभी 2 भी हमने लिया है, सब कुछ लिया है, सो -4 -1 रेस टू n +1 ना, सर तो -2 आएगा ना, 2 ले लिया था हमने हाँ 2 भी लिया है, तो ये -2 और यहाँ पे 1 ही रहेगा ना, हाँ सर ठीक है, सो वो -1 रहेगा, एक्चुअली माइनस साइन भी कॉमन आ जाता, ठीक है। सो द फाइनल आंसर इज -6 अपॉन, ये सिंप्लीफिकेशन इतना नहीं किया तो भी चलता है, n स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू 2 -1 रेस टू n +1, डन, दिस इज द वैल्यू ऑफ an। अभी bn आपको करना है कैलकुलेट। ये ऐसे जो एग्जाम्पल है ना, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, डोंट वरी, आपको इससे इजी क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में, बट ये जो मैं दे रहा हूँ आपको, इट विल 100% हेल्प यू फॉर एनी एग्जाम्पल ऑन दिस पार्ट, ठीक है। सो bn आपको करना है, दैट आई विल वेरीफाई इन क्लास, तो वो एक एज अ होमवर्क कंसिडर करके आप करो। सो अप टू दिस पार्ट जितना मैंने आज लिया है फर्स्ट सेक्शन में, तो वहां पे ये नीचे मैं आपको दे रहा हूं, तो ये आपको ट्राई करना है, लिमिट्स में चेंज कर रहा हूं, मैंने आपको 0 to 2 पाई का दिया था, यहाँ पे 0 to 2 का है, सो दिस इज अगेन अ होमवर्क, ओके। ये मैंने कवर किया है, सो दिस इज नॉट फॉर अ होमवर्क, दिस इज अगेन अ होमवर्क, ठीक है। सो ट्राई दिस 3 एग्जांपल्स टुडे इटसेल्फ, तो ये पूरा आपका सेक्शन कवर होगा, ओके। अभी जो नेक्स्ट स्टेप है, जो नेक्स्ट टाइप है, तो इंटरवल का हो गया क्लियर, इंटरवल में बस ये चेंज होता है, ये समझ में आ रहा है सबको, इंटरवल के केस में कैसे करना है, इज दिस क्लियर? ये 0 to 6 का 2 पार्ट जी में हो रहा सर था, 2 पार्ट में डिवाइड करो, तो उस हिसाब से आपको बस करने सॉल्व, करेक्ट। यस सर। तो इंटरवल का हो गया अभी क्लियर, इसके भी प्रैक्टिस आप करो, एंड विल टेक मे बी वन एग्जांपल इन थ्योरी लेक्चर आल्सो, एक इंटरवल का लास्ट लेके हम जाएंगे आगे, ओके। तो ये हो गया टाइप 2, सॉरी सेकंड टाइप। पहला टाइप तो ऊपर जो होता
था वो पहला टाइप ही था। अभी जो लास्ट टाइप है फ्रॉम दिस यूनिट, इसके आगे इसमें दो ही पार्ट अभी रह गए फ्रॉम दिस यूनिट। वन इज इवन एंड ऑड फंक्शन, उसके आगे हार्मोनिक एनालिसिस है। हार्मोनिक एनालिसिस इज अ ट्रिवियल पार्ट, ओके, इट्स वेरी इजी टॉपिक, टोटल कैलसी बेस्ड टॉपिक है, कुछ भी इंटीग्रेशन नहीं है, कुछ भी डेरिवेटिव नहीं है, इसलिए वो सारे स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करेंगे, दैट आई नो, क्योंकि वो हार्मोनिक एनालिसिस में कैलकुलेशन, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव कुछ नहीं आता, नंबर के कैलकुलेशन है कैलसी में, लाइक मैट्रिक्स, इसलिए वो सबसे इजी टॉपिक है। तो वही दो टॉपिक रह गए, इवन एंड ऑड अभी मैं कर देता हूँ विद इन 30-40 मिनट्स, एंड आफ्टर दैट हार्मोनिक एनालिसिस विल टेक इन अ क्लास, ठीक है। सो नाउ द लास्ट पार्ट इज even and odd function. So type 3, even and odd function. So let us first discuss what is even function. So can anyone tell me what is even function? क्या होता है even function? क्या होता है even function? f of minus x equals to f of x. f of अगर minus आप x x equals to इक्वल टू f of माइनस x. एक्स रखते हो, and अगर आपको फिर से वही फंक्शन मिलता है, then that function is called as even function. कौन कौन से एग्जाम्पल आपको पता है? cos x, cos x इवन है क्योंकि cos माइनस एक्स इज cos x, x square, x स्क्वायर भी है, like x raised to 4 and so इसके on, सारे सारे इवन इवन है। पार्ट्स। और कौन से? और x sin x इवन है क्या? हाँ सर, हाँ, क्योंकि यहां से भी x, अगर आप x इक्वल टू माइनस एक्स Yes. पुट करते हो तो आपको वही फंक्शन मिलेगा, ठीक है। सो इवन हाँ फंक्शन होता सर, क्या है कि अगर आप x इक्वल टू माइनस एक्स रखते हो, अगर फंक्शन में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, फंक्शन वही रहता है, देन वी कॉल इट एज इवन फंक्शन। एंड अपोजिट टू दिस ऑड फंक्शन क्या है? साइन चेंज हो जाता है। हाँ, अगर माइनस साइन आ जाता है वहां पे कॉमन, ओके, देन वी कॉल इट एज ऑड फंक्शन। तो डेफिनेशन ये है कि अगर आप x इक्वल टू माइनस एक्स रखते हो एंड अगर आपको माइनस एफ ऑफ एक्स मिलता है, देन वी कॉल इट एज ऑड फंक्शन। सो व्हाट आर द एग्जांपल्स? Sin x, sin x, famous odd function. Next is x, x, next is x क्यूब एंड सो ऑन, और डिग्री के सारे। और कुछ पता है आपको? x cos x, सर x cos x, हाँ है ना, x cos x, इसमें भी माइनस एक कॉमन आएगा, डन, ठीक है। सो दिस आर दी ऑड फंक्शन। अभी इसका क्या रोल है ये फोरियर सीरीज में, ओके, वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। क्योंकि इवन एंड ऑड फंक्शन आते हैं ना, तो कैलकुलेशन और इजी हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपको उसका प्रूफ अभी नहीं दे रहा हूं ओके, उसका प्रूफ भी है एंड वो इजी भी है बट बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट, ओके, आई विल नॉट कंसीडर दैट प्रूफ, आई विल डायरेक्टली गिव यू द फॉर्मूलेज। तो इवन एंड ऑड फंक्शन में क्या हमारे पास बेनिफिट है, तो वो आप देखो, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ थ्रू अ टेबल। सो लेट मी कंसिडर वन सेक्शन ओनली फॉर इवन फंक्शन। तो अगर आपका फंक्शन इवन आता है तो क्या चेंज होगा, एंड अगर आपका फंक्शन ऑड आता है तो क्या फॉर्मूलेज आए, ठीक है। तो इसमें नाइदर इवन नॉर ऑड ये ऑप्शन नहीं है, नाइदर इवन नॉर ऑड मतलब आपने जो स्टार्टिंग में किया वही है। तो ये अगर आपका फंक्शन इवन आता है तो ये रिजल्ट है, अगर आपका फंक्शन ऑड आता है तो ये रिजल्ट है। बट इसमें भी एक कंडीशन है, इवन एंड ऑड ये सारे केस में आपको एप्लीकेबल नहीं होगा, ओके। ये सबसे मेन रिमार्क मैं आपको देने वाला हूं यहाँ पे, ओके। सो एज अ नोट आप लिखो पहले, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन, even function and odd function calculation, or even an odd function is applicable only for the interval minus L to L। ये इसका सबसे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है। सो इवन एंड ऑड फंक्शन मतलब ये जो टाइप आता है
ये बस कौन से इंटरवल के लिए आता है? ओनली फॉर इंटरवल -L to L. कैन यू टेल मी सम इंटरवल लाइक दिस? ऐसे इंटरवल कुछ आप बोल सकते हो क्या? Minus pi to pi. minus -pi to pi, correct. Next is -4 to 4, like that, है ना? -k to k, ऐसे सारे कोई भी, ओके. ये इसमें कंसिडर होगा क्या? कैन वी टेक 0 to 2 pi हियर? ये इस No. इंटरवल का हो तो दोनों मतलब अब पहला लिमिट और सेकंड लिमिट दोनों लिमिट आपके सेम चाहिए और एक को माइनस साइन चाहिए, तो -L एंड L, तो ये वैल्यू सेम चाहिए, बस माइनस का डिफरेंस आना चाहिए. ऐसे इंटरवल के लिए ही आप ये यूज कर सकते हो. ये था, ये इसकी कंडीशन है ओनली फॉर दिस इंटरवल. ठीक है, तो ये इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. ओके, ये मेन टूल है, क्योंकि अगर आपको यही नहीं समझ में आएगा तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि अप्लाई कहां पे करना है. सो दिस इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन फॉर्मूलेज इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द इंटरवल -L to L. नाउ लेट अस डिस्कस दिस फॉर्मूलेज. ठीक है, क्या इसमें बेनिफिट होता है वो डिस्कस करते. हाँ, सो यहाँ पे यल कैलकुलेट वैसे ही होगा जैसे आपने इससे पहले भी किया है. हाँ, सो लेट मी जस्ट कंसिडर फर्स्ट फॉर्मूला. तो इसमें ए नॉट क्या आता है? देखो, ए नॉट आपका आता है 2/L 0 to L f of x dx. क्या आता है? ए नॉट फॉर्मूले थोड़े चेंज हो रहे हैं इवन एंड ऑड फंक्शन में, यानी ये इजी होता है क्योंकि आपका लोअर लिमिट 0 आता है. तो आप देखो, जब आप अपर एंड लोअर लिमिट का कैलकुलेशन करोगे ना, वो इजी जाएगा, तो इससे और इजी हो जाता है. तो ए नॉट का फॉर्मूला क्या है? 2/L 0 to L f of x dx. एन का फॉर्मूला क्या है? 2/L 0 to L, ये चीजें सेम रहेगी, f of x cos cos x n pi and pi. x upon L dx. Into dx. But here Pn is directly 0. आप देखो, इससे पहले आपने इतने सारे एग्जांपल में सारे वैल्यूज कैलकुलेट किए, ए नॉट कैलकुलेट किया, एन कैलकुलेट किया, बीएन कैलकुलेट किया, कुछ जगह पे वो 0 आ भी रहा था, बट आपको पहले नहीं पता था कि वो 0 आने वाला है कि नहीं आने वाला. बट अगर आपके पास -L to L इंटरवल है, अगर आपके पास -L to L इंटरवल है एंड अगर आपका फंक्शन इवन है, तो बीएन क्या आता है? डायरेक्टली 0. आपको बस ए नॉट एंड एन ही कैलकुलेट करना है. यू नीड टू कैलकुलेट ओनली 2 वैल्यूज इन दिस केस. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं सबको? सर अंदर साइन का Yes. फंक्शन है इसलिए 0 हो रहा है क्या? करेक्ट करेक्ट, हाँ, 0 होगा. एंड इसमें रीजन क्या है पता है क्या? अभी मैं आपको प्रूफ नहीं दे रहा हूं, इसलिए थोड़ा बहुत आपको ये होगा. इसका रीजन ये है, आपने ये इंटीग्रेशन लर्न किया है ना, -a to f of x dx. ओके, इट इज 2 times इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx. कब होता है ये? अगर आपका Even फंक्शन क्या है? इवन है. अगर Even ऑड है, ये 0 होता है. अगर आंसर क्या है? odd function. ऐसा 12th में रिजल्ट था. तो ये इसका रीजन है ना, ये रिजल्ट जिनको थोड़ा इंटरेस्ट है उनके लिए दे रहा है. ये उसका रीजन, ये 0 क्यों होता है. तो उसने करेक्ट गेस किया, उसमें साइन आता है, दैट बिकम ऑड फंक्शन, तो फिर वो 0 होता है. ओके, अभी आते हैं आगे. ऑड में देखो, सबसे इजी होता है ऑड फंक्शन का कैलकुलेशन, क्योंकि ऑड फंक्शन में ए नॉट भी 0 है, ए एन भी 0 है. ओनली वी नीड टू कैलकुलेट बी एन एंड द फॉर्मूला इज सेम. 2/L 0 to L f of x sin n pi x upon L dx. तो मैं आपको अभी क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर आपके पास -L to L इंटरवल है, पहला पॉइंट. सेकंड, उसके आगे आपके पास अगर इवन फंक्शन है तो दो ही चीजें कैलकुलेट करो, ए नॉट एंड ए एन. ओके, अगर ऑड फंक्शन है तो एक ही कैलकुलेट करो, विच इज जस्ट बी एन. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके, एंड थोड़े बहुत फॉर्मूले चेंज हो रहे हैं. 2/L एंड 0 to L है. 1/L C2 C+2L नहीं है, 2/L 0 to L है. ठीक है, लेट्स टेक वन एग्जांपल ऑन इवन, वन एग्जांपल ऑन ऑड, देन विल स्टॉप. तो एक एक एग्जांपल लेते हैं, ये फास्ट हो जाते हैं कैलकुलेशन. हाँ, तो अभी एक एक एग्जांपल इस पे लेते हैं, देन विल स्टॉप. सो एग्जांपल 1. सो एग्जांपल, सारी चीजें मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, कहां पे यूज करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, एवरीथिंग. सो क्वेश्चन 1, फाइंड
Fourier series of f of x equal to x square defined on the interval. मुझे दाने निकलने लगे हैं क्या Please mute दाने yourself. Please mute हाँ, yourself. आया Someone क्या please mute yourself. -2 to 2. Okay. एक काम करके एलोवेरा जेल लेके आके तेरे लिए Sika to mic on है. Can you please mute yourself? वो कभी नहीं मुझे भी आएगा अभी एक आधा दिन पर शायद Okay. So find Fourier series of f of x equal to x square defined on the interval -2 to 2. Okay. हाँ. Solution पे अभी आप प्लीज अच्छे से फोकस करो. ओनली फॉर लास्ट 10 to 20 मिनट्स. ओके. ये मेन पॉइंट आपका कवर होगा. ये इजी है. ये इजी सेक्शन का क्वेश्चन है. आपको इस यूनिट पे 20 मार्क्स का कंटेंट है. हाईएस्ट वेटेज फॉर दिस यूनिट इन एमटी. 20 मार्क्स में से जो इजी क्वेश्चंस रहेंगे वो ये है जो आपका अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सो प्लीज फोकस करो. ये सॉल्व होने ही चाहिए आपको. हाँ. तो इवन एंड ऑड इस टाइप से क्यों करना है, उसका रीजन क्या है? इंटरवल. तो यहाँ पे आपके पास इंटरवल क्या है? -l to l के फॉर्म में. सो हियर जो आपके पास इंटरवल किस फॉर्म में? -l to l के फॉर्म में है ना. तो इसलिए आपको करना क्या है? इवन एंड ऑड फंक्शन से जाना है. समझ में आ रहा है ये पहला पार्ट कैसे आइडेंटिफाई किया? बस इंटरवल देखो, फंक्शन कुछ नहीं देखना है. जस्ट आइडेंटिफाई इंटरवल. उस इंटरवल से मुझे क्या समझ में आ गया कि मुझे यहाँ पे इवन एंड ऑड से कैलकुलेशन करने. ओके. तो उसके लिए मुझे पहले क्या चेक करना है? व्हाट इज माय फर्स्ट स्टेप कि आपका फंक्शन क्या है. आपका फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर है. ये इवन है कि ऑड है? इवन वेरी इजी. इवन फंक्शन. ये चेक करना है. आपको टफ होगा नहीं एग्जाम में भी. ट्रिवियल फंक्शन आते हैं. सो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आपका इवन फंक्शन है. अगर इवन फंक्शन आता है तो मैंने आपको क्या बोला है? bn क्या है? डायरेक्टली 0. कुछ भी नहीं करना है कैलकुलेशन bn का. तो आपको डायरेक्टली क्या लिखना है? आवर bn इज 0. एक मिनट पेज ऐड करता हूं. समझ में आ गया? इवन फंक्शन, इसलिए मैंने क्या लिखा? bn डायरेक्टली 0. मुझे बस अभी कैलकुलेट क्या करना है? ए नॉट कैलकुलेट करना है एंड an कैलकुलेट करने. क्लियर? यस और नो? यस. अब इसके लिए मुझे चाहिए यल, है ना. आगे की कैलकुलेशन के लिए चाहिए मुझे यल. यल का फॉर्मूला है b माइनस ए बाय 2. वो क्या आएगा? ये इंटरवल क्या है? 2 माइनस ऑफ -2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2. ये इससे भी कंपेयर करके आ जाता है. -l to l इंटरवल है तो l की वैल्यू क्या होगी? वैसे 2u होगी. समझ में आ रहा है? ऐसे भी कर सकते हो या डायरेक्ट कंपेयर करके भी लिख सकते हो. l क्या आता है? 2. इज दिस क्लियर? यस सर. ठीक है. यल ऐसे भी कैलकुलेट करो या हमेशा ये जो नंबर होता है ना -l to l में वही यल होता है. तो यहाँ पे आप ये डायरेक्टली ले सकते हो. l is 2 कैसे भी. सो l is 2. नाउ राइट द फॉर्मूला फॉर an, है ना. क्या an का फॉर्मूला? इवन के केस में 2 बाय l 0 to l f of x dx. Put the values. So 2 by 2 0 to 2 and f of x क्या था? x square था. Okay. x square dx. So it is equal to 2 कैंसिल होगा. x square का इंटीग्रेशन क्या है? x cube by 3 where your limits from 0 to 2 put upper limit minus lower limit. क्या आंसर आएगा? ये 8/3. 8/3 हो गया. ये नॉट कैलकुलेट हो गया. ये मैंने आपको पहले बोला ये इजी सेक्शन का. सॉरी मैंने It will be a naught ना. हाँ ए नॉट ए है ना. देखते समय मिस्टेक हो गई. सो इट इज ए नॉट. हाँ अभी आते एन पे. एन का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे 2 बाई एल 0 टू एल एफ ऑफ एक्स कॉस n pi x upon l dx. Okay, put the values. So l is 2. So 2 by 2 0 to 2 फंक्शन है आपका x स्क्वायर. ये आगे होगा cos n pi x upon 2 dx. ठीक है. एंड नाउ डू द कैलकुलेशन. तो आपको पता है ये होगा आपका u, ये होगा आपका v. जस्ट डू द कैलकुलेशन. सो इट इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट. पहला टर्म वैसे ही रखो. सेकंड का इंटीग्रेशन विच इज साइन. तो साइन
n pi x by 2 upon n pi by 2. Okay, and now you, ये प्लस साइन था, सो नाउ यू माइनस साइन, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 2x, ये जाएगा माइनस cos n pi x by 2 होल डिवाइडेड बाय n n square pi स्क्वायर square by pi 4 स्क्वायर बाय 4, या 2 स्क्वायर भी लिख सकते हो, एक और जाएगा, है ना। सो -2 था तो यहाँ पे होगा प्लस विच इज 2, cos का साइन आएगा, सो माइनस साइन n pi x by 2 and whole divided by n cube pi cube by 8 ना, 8, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट, लिमिट्स फ्रॉम 0 to L मीन्स 2 ना, हाँ 0 to 2. Now put upper limit and lower limit, करो एक कैलकुलेशन. So when I put upper limit x equal to 2, यहाँ पे क्या आएगा, साइन n पाई, 0 हो जाएगा सर हाँ तो साइन n पाई 0, यहाँ पे भी क्या होगा, थर्ड टर्म में भी साइन n पाई आएगा, सो विच इज 0, 0 तो दो टर्म तो 0 आ गए, यहीं पे कैलकुलेशन करना है n इक्वल टू 2 का, सो लेट्स डू दैट. So it is equal to, now let's calculate for upper limit. So पहला टर्म क्या है, 0 बिकॉज ऑफ साइन n पाई, तो मैंने 0 लिखा. सेकंड टर्म क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, x की वैल्यू 2 है तो 4 4 into होगा, cos n पाई की वैल्यू क्या है, -1/n, अभी कैलकुलेट n किया हमने, -1/n, एंड होल डिवाइडेड बाय क्या है, n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 4. ये हो गया अपर लिमिट. थर्ड टर्म भी क्या है, 0, ये हो गया अपर लिमिट. माइनस लोअर लिमिट के लिए आते हैं, लोअर लिमिट में x क्या है, 0, तो इसमें x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, तो पहले दोनों टर्म 0 आएंगे, एंड थर्ड टर्म भी क्या होगा, 0, सो एवरीथिंग इज 0, क्योंकि साइन 0 है इसमें, करेक्ट. सो द आंसर इज, क्या आ रहा है फाइनल आंसर, 16 -1/n अपॉन n स्क्वायर, n square pi square. दिस इज द वैल्यू ऑफ an. मैंने थोड़ा फास्ट इसलिए किया है क्योंकि ये ऐसे कैलकुलेशन ऊपर भी आपने कवर किए. और आपको मैंने बोला एक बार आपने इतने भी क्वेश्चन प्रिपेयर किया ना, सारा ये टॉपिक कवर हो जाता है. सो आपने ए नॉट भी निकाला, ए एन भी निकाला, और बी एन क्या था, 0, बस फोरियर सीरीज में पुट करो, तो वो हमने स्टार्टिंग में नहीं लिखी थी, अभी लिखते हैं. सो तो आपकी फोरियर सीरीज में आपको ये सारे वैल्यूज पुट करने, क्या थी आपकी फोरियर सीरीज, सो वो तो सेम रहेगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2 समेशन n runs from 1 to infinity an cos n pi x by L plus bn sin n pi x by L with this bracket complete. a नॉट की वैल्यू क्या आ गई थी ऊपर, 8/3 है ना, तो a नॉट इज हाँ सर 8/3, सो उसको वैसे ही रखो, 8/3, या करना है तो आप 8/6 लिख के कर सकते हो, डिवाइडेड बाय 2 प्लस समेशन n runs from 1 to infinity. Okay, what is an, an is 16 -1/n अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू क्या आएगा, cos n पाई x, यल क्या था 2, ओके, प्लस आगे क्या होगा, व्हाट इज bn, क्या है 0 bn, 0 है, तो नहीं लिखा तो भी 0 चलता है, बट ये क्या है, 0 है, तो मैं लिख रहा हूं वैसे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट नहीं लिखा तो भी चलेगा, इंटू साइन n pi x by 2 हो गया. दिस इज द फाइनल आंसर. ये आपको लेस वेटेज के लिए आता है, बट ये स्कोरिंग है क्योंकि इसमें ज्यादा टफ कैलकुलेशन नहीं रहेंगे, ठीक है. तो ये एक लिया मैंने आपका इवन फंक्शन का प्रॉब्लम. तो मैंने क्या किया है, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं. ओके ओके, आपको एक्स स्क्वायर की फोरियर सीरीज कैलकुलेट करनी थी, बट इंटरवल -l to l के फॉर्म में थी, तो ये मैंने पहले रिजल्ट लिखा कि अगर -l to l इंटरवल है तो आपको इवन एंड ऑड चेक करना है. तो यहाँ पे इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है तो ये तीनों को रिजल्ट आपको यूज करने जो मैंने इवन के अंदर लिखे. तो bn डायरेक्टली 0 आता है, वो मैंने लिख लिया, और मुझे बस a नॉट और an कैलकुलेट करना है, तो a नॉट कैलकुलेट किया और an कैलकुलेट किया और फोरियर सीरीज में रख दिया, ठीक है. नाउ द लास्ट एग्जाम्पल फ्रॉम टुडेज सेशन. सो
क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड Fourier series expansion of f of x equal to x minus x cube minus 1 to 1. So x minus x cube defined on the interval minus 1 to 1. So in solution. ओके फिर से वही यहाँ पे इंटरवल क्या है माइनस यल टू यल के फॉर्म में है ना हियर योर इंटरवल इज ऑफ द टाइप माइनस यल टू यल तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है इवन एंड ऑड आपको चेक करना है तो लेट्स चेक कि आपका फंक्शन क्या है सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब क्या फंक्शन है ये इवन है कि ऑड है कौन सा फंक्शन है ये ऑड फंक्शन ऑड इसमें x भी ऑड है x क्यूब भी ऑड है तो ये टोटल फंक्शन आपका बनेगा ऑड फंक्शन तो अगर ऑड फंक्शन आता है तो क्या होता है सबसे इजी होता है ऑड फंक्शन में क्या होता है ए नॉट भी जीरो है ए एन भी जीरो है आपको बस क्या कैलकुलेट करना है बी एन कैलकुलेट करना है अगर ऑड फंक्शन आता है तो आपको पता क्या होता है कि ए नॉट डायरेक्टली जीरो ए एन डायरेक्टली जीरो दोनों का कैलकुलेशन स्किप हो जाता है आपको बस थर्ड कैलकुलेट करना है विच इज बी एन बी एन का फॉर्मूला क्या है 2 बाय एल 0 टू एल एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन एल डीएक्स सो लेट्स कैलकुलेट एल फर्स्ट वैसे भी आपको समझ में आएगा कंपेयर करके एल क्या आने वाला है क्या आने वाला है 1 ही आने वाला है ओके फिर भी मैं कैलकुलेट करता हूं बाय द रेगुलर अप्रोच सो एल इज b माइनस a बाय 2 चलो लेंथ कैलकुलेट करो माइनस 1 टू 1 है सो 1 माइनस ऑफ माइनस 1 बाय 2 सो इट इज 1 तो ये 1 ही आने वाला है ठीक है नाउ पुट द वैल्यूज हियर सो bn इज इक्वल टू फॉर्मूलेज में सारे वैल्यूज पुट करो 2 बाय 1 इंटीग्रेशन 0 टू 1 फंक्शन क्या था x माइनस एक्स क्यूब साइन n पाई x क्योंकि L1 है डन सो जस्ट सॉल्व दिस वन इंटीग्रल दैट कंप्लीट्स द क्वेश्चन ठीक है तो इसको अभी लास्ट इंटीग्रल है इसको हम सॉल्व करते सो दिस इज माय u दिस इज माय v ओके नाउ you generalize rule of by parts so it is equal to 2 as it is first term as it is so x minus x cube सेकंड का इंटीग्रेशन तो वो आएगा माइनस कॉस एन पाई एक्स डिवाइडेड बाय एन पाई है ना फिर ये प्लस साइन था तो माइनस साइन आएगा डेरिवेटिव है 1 माइनस 3x स्क्वायर फिर यहाँ पे क्या होगा साइन होगा तो साइन एन पाई एक्स अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर फिर ये माइनस साइन था तो प्लस साइन आएगा यहाँ पे क्या होगा माइनस 6x होगा डेरिवेटिव और यहाँ पे क्या होगा साइन का माइनस कॉस आता है इंटीग्रेशन तो ये प्लस होगा सो कॉस एन पाई एक्स डिवाइडेड बाय एन क्यूब पाई क्यूब एक और जाएगा तो ये माइनस साइन माइनस 6x का आता है माइनस 6 और ये कॉस का प्लस साइन तो प्लस साइन एन पाई एक्स अपॉन एन रेस टू 4 पाई रेस टू 4 हाँ चेन बड़ी है बट एट द एंड एक ही इंटीग्रेशन है तो हम कर सकते हैं एंड वेयर यूर लिमिट्स फ्रॉम आपके लिमिट्स क्या है 0 to 1 एंड यूर लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1 चलो अभी बस अपर एंड लोअर लिमिट कैलकुलेट करते सो इट इज इक्वल टू ये 2 एज इट इज एंड लेट्स कैलकुलेट दी अपर लिमिट चलो आते फर्स्ट टर्म से x इक्वल टू 1 लेना है हाँ क्या होगा यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट करते हो तो आप व्हाट अबाउट दिस 1 माइनस 0 इसके वजह से 0 होगा तो पहला टर्म 0 है 0 सेकंड टर्म पे आते हैं हाँ सेकंड टर्म में ये साइन n पाई आएगा ना x इक्वल टू 1 पे करेक्ट ना x इक्वल टू 1 पे ये होगा साइन n पाई क्या है
0. 0, तो सेकंड टर्म भी आएगा 0। थर्ड टर्म पे आते, थर्ड मतलब ये ये होगा -6 x इक्वल टू 1 पे, तो -6 लिख लेता हूं मैं पहले। फिर क्या है, हाँ यही पे cos n पाई, cos n पाई की वैल्यू क्या है, -1 raised to -1 -1 raised to n होल डिवाइडेड बाय n n cube pi cube. पाई क्यूब। ये फिर से sin n पाई होगा 0 होगा। दिस इज फॉर अपर लिमिट माइनस, लेट्स कैलकुलेट फॉर लोअर लिमिट। अभी लोअर लिमिट x 0 है, x 0 की वजह से 0 ही पहला आता टर्म 0 होगा, x 0 की वजह से sin 0 0 है, मतलब सेकंड टर्म भी 0 0 होगा। आ जाएगा। थर्ड टर्म में क्या है, इसमें भी x आ रहा है तो ये भी 0 0 होगा। आ जाएगा। लास्ट में फिर से sin 0 है तो ये भी 0 होगा। सो ऑल टर्म्स आर 0। डन। एंड सो द फाइनल आंसर of this Bn is -12, correct है, -1 raised to n and whole divided by n cube and pi cube. This is the value of Bn. Clear है? So now just put all these values in the Fourier series. तो आपके पास Fourier series पता ही है. So your f of x equal to a0 by 2 plus summation n runs from 1 to infinity n cos of n pi x by L plus Pn sin of n pi x by L। बट अब ये जो 0 है वो नहीं लिखा तो भी चलेगा ना, क्योंकि वो यूर आपका कॉल है, आपको पता है वो कैलकुलेशन 0 आएगा। ए नॉट क्या था 0, एन भी क्या था 0। सो कैन आई कंसिडर दिस एज द फाइनल आंसर। n runs from 1 to infinity, Bn की वैल्यू क्या थी, -12 -1 raised to n upon n cube pi cube into sin nx n pi x। डन, क्योंकि रिमेनिंग वैल्यूज वैसे भी 0 है। क्लियर हो गया ये? यस, इज दिस Yes, sir. क्लियर? क्योंकि ए नॉट 0 है Yes. एंड ए एन भी 0 है, तो वो टर्म नहीं भी लिखे तो भी क्या मैटर करेगा ना, क्योंकि वो 0 ही आने वाला है। सो दिस इज योर फाइनल फोरियर सीरीज। ओके, सो ये जो सेशन है इसमें जितने भी एग्जांपल्स है मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूं। टुडे इटसेल्फ यू ट्राई टू सॉल्व ऑल दिस एग्जांपल्स इन योर नोटबुक। ये जो प्रिपरेशन होगा ये डायरेक्टली आपका यूनिट 2 का प्रिपरेशन ऑलमोस्ट 80% हो जाएगा। ओनली 20% पार्ट विल बी रिमेनिंग फ्रॉम योर प्रिपरेशन एंड विच इज इजी ऑल्सो। ओके, फॉर हार्मोनिक एनालिसिस का पार्ट है जो इजी है। तो आज के सेशन के क्वेश्चन प्लस ये नीचे जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए ये सारे आप ट्राई करो, जिसमें से ये मैंने कवर किया है, ये नहीं करना है, ये भी मैंने कवर किया है। सो ओनली दिस वन एग्जांपल एज अ होमवर्क। प्लीज ट्राई योर सेल्फ, जो भी डाउट आता है आप मुझे बोलो थियरी में, सो विल डिस्कस ऑन दैट पार्ट। एंड इसमें से भी कुछ क्वेश्चन में फिर से प्रैक्टिस पर्पज के लिए लेता हूं। याद रखो ये जो यूनिट है ये 20 मार्क्स का यूनिट है जो अभी चल रहा है। 20 मार्क्स में से आपको 3 मार्क के ट्रू और फॉल्स है। ओके, 4 मार्क के ऐसे 2 क्वेश्चन है, ये इजी सेक्शन वी कैन से, एंड एक 7 मार्क का क्वेश्चन होगा ऐसा डिफिकल्ट। कितना हो जाता है ये, 18 हो जाता है ना? हाँ. ओके, ये 5 कर देते हैं, ऐसा होगा शायद। अभी करेक्ट है, 20 हो गया ना अभी, 10 and 7 and 10 10 ऐसा वेटेज आपको होगा। ठीक है, सो डिफिकल्ट में तीनों कोएफिशिएंट आएंगे जनरली, ए नॉट ए एन बी एन, और इजी सेक्शन में ऐसे टाइप के रहेंगे जो मैंने ऊपर अभी लिए, या तो हार्मोनिक भी है, हार्मोनिक भी आपका इजी सेक्शन में जा सकता है। ठीक है, सो इतना आपको इस यूनिट में प्रिपेयर करना है। विल डिस्कस some more examples in remaining theory lectures. Okay.